slides की PPT है, but this will help you guys to understand in a very basic way. इसके अंदर जो भी हमने statistics में cover कर रहे हैं in this EQSM course, all I have tried to put in there, right from central tendencies to spread to studying the symmetry and skewness to forming regression with the help of correlation. All of those stuff, whatever there is there in the semester, I have put in this one PPT. So let's start it. In this, we'll talk about mean, median, mode, measures of spread, range, standard deviations. Now, guys, I have taken a small example here to explain the mode. This is a classroom. This is a classroom of some students. There are around 10-12 students, and the data is there. Height is there. Height is given 154 centimeter, 139 centimeter, 154, 192, 180, 192, 155, 154, 140. So these are the height of the students there. And if we see 154 is appearing 3 times, the frequency is highest, so we give the mode as 154 becomes the mode of this data. Mode of the height of this data becomes 154 centimeter. We move ahead and we try to see the median. In case of median, what we have done, I'll go to the last slide. In median, what we do is we arrange the data in increasing order. So what we have done, we have arranged the data in increasing order: 139, 140, 154, 154, 154, 155, 180. We have arranged it in increasing order and tried to find the central value. There are 9 values in total. So 9, we knew that there is a formula n plus 1 by 2. N plus 1 by 2, since n is 9, it becomes 10 by 2 is equal to 5. So fifth data becomes the median. We have tried to find out the median here. 154 becomes the median. 154 centimeter is the median height of the class. You can see it from here. Position of the median is 5th. Now suppose instead of 9 data, since it is an odd data, we are able to get an answer from this formula n plus 1 by 2, like 9 plus 1 by 2 is 5. But suppose there are even number of data, then we get an odd result. We come here, we add one more student here, 196 centimeter. In the end, there were 9 data, now we are taking 10 data. So when we are taking 10 data, when we use that formula n plus 1 by 2, instead of 5 we get 5.5, but there is no number here as 5.5. We don't have 5.5 data. So in this case, we take the 2 middle data, 5th and 6th data, and we take the average of it. So 154 and 155, we take the average, so we get 154.5 as the median. So you have been able to see the mean, you have been able to see the median, and mode and median. Mean we are able to find using this formula, wherein we sum all the heights and we divide by number of students. Suppose there are 10 students here, so we are adding the heights and we are dividing by 10, so we get the mean here. So this is how we measure the centers or the central tendency. We are able to find them in these 3 slides. You have seen it. Next we go to the measures of spread. Spread is how far the data is from my mean or the center. And to find this out, we have 2 things. One is called range and another is called standard deviation. Range is basically maximum minus minimum. In this data, when we have arranged it in increasing order, the maximum value is 196 and minimum value is 139. So when we subtract 196 minus 139, we will get the range of this data. We'll get the range of this data. And standard deviation is basically found out by this formula which we have studied, which is sigma xi minus x bar. Xi is the number of data we have and x bar is the mean. So we subtract them, square, sum it up and divide by n minus 1. See, in the denominator, at some places you will see n, at some places you will see n minus 1. The difference you have to understand is whenever we are talking about a sample, we call it n minus 1, and whenever we are talking about a population, we call it n. So this is the only difference you have to know, that is whenever sometimes you will see n minus 1, sometimes you will see n, but the only difference is with sample it becomes n minus 1 and with the population it becomes capital N, or the total number of observations. Now we have tried to find out, I have shown how we can find it out here. We have calculated the mean of this data. The mean of this data, we have taken a small data here. Data sets are 10, 12, 16, 19 and 20.
And when we take the mean of this data 10, 12, 16, 19 and 20, the mean comes out to be 15.4. 15.4. So to calculate the numerator, what we are doing, we are subtracting 15.4 from the data. 10 minus 15.4, 12 minus 15.4, 16 minus 15.4. We will find the difference, then we will square it and we will sum it here. So we get the total or the numerator of this value we will be able to find out. In the denominator we will write n minus 1 and we will take the under root to get the value. I hope you are able to understand. We have done this example quite a few times. So standard deviation you will be able to find out from this. Now the question is actually what does the standard deviation tell us? So standard deviation tells us how close the value in a data set is to the mean. मीन से कितना दूर या कितना पास है मेरा डेटा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमको बताता है. अब अगर हम इसको देखें, यहाँ पर एक चीज़ वैल्यू देखिएगा, ये हमने एक क्लासरूम है हमारा और ये सेंटर में ये पूरी कोई डेटा पॉइंट्स हैं अलग अलग और इसके बीच में हमारा मीन या मीडियन निकला हुआ है. अगर मेरा डेटा पॉइंट बिल्कुल मीन के नज़दीक है तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा कम है, लेस स्टैंडर्ड डेविएशन है और मेरा डेटा का स्प्रेड जो है कम है. और उसमें जब मैं डेटा का ये ग्राफ बना रहा हूँ तो सारे के सारे मीन के पास मेरी पूरी की पूरी क्लास जो है ये मीन के आसपास में ही केंद्रित है. It is all the classroom is whatever data I have taken, whether it is the marks or the height of the students, if the standard deviation is less, which means everybody is very close to that mean. mean के आसपास ही हैं सारे लोग. लेकिन अगर मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब है कि जो मेरी मीन हाइट है क्लास की उससे बच्चे दूर में स्प्रेड है. मतलब अगर मेरी हाइट 5 फुट है तो पहले केस में ज़्यादातर बच्चे 5 फुट के आसपास ही थे, या तो वो 4.8 फुट थे या 5.2 फुट थे. सारे के सारे बच्चों की जो हाइट थी वो 5 फीट्स के अराउंड थी. लेकिन जब मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा आया, इसका सीधा सा मतलब ये है कि बच्चों का जो हाइट की स्प्रेड है वो ज़्यादा है. 5 फीट मीन है, बट कुछ बच्चों की हाइट 6 या 7 फीट भी है और कुछ बच्चों की हाइट 4 फीट्स भी है. तो जहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा ज़्यादा रहेगा, और जहाँ पर भी हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वहाँ पे हमारे डेटा का स्प्रेड भी कम है. मतलब हम मीन के उतने नज़दीक है और हमारा डेटा या जो हम सेंट्रल टेंडेंसी से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि इस क्लास की हाइट मीन हाइट 5 फीट है और अगर क्लास मेरी ऐसी है जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो इसका मतलब ज़्यादातर डेटा मेरा मीन के पास है, मतलब मेरी डेटा की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है. और अगर मैं कह रहा हूं मेरी क्लास की हाइट मीन हाइट 5 फीट है बट देयर इज स्प्रेड अक्रॉस, ज़्यादा दूर दूर हैं लोग, तो मेरा मीन उतनी एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन मेरे डेटा का नहीं कर रहा है. मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन इज हायर वैल्यू विच मीन्स देयर इज ग्रेटर स्प्रेड ऑफ डेटा. और उसको जब मैं बनाऊंगा सिमेट्री में, जो मैंने उस दिन आपको कर्व्स बनाए थे, वो देखिए वो इस तरीके का बन के आएगा. कुछ बच्चे यहाँ पे 4 फीट के भी होंगे, कुछ 4.5 फीट के होंगे, कुछ 5 फीट के होंगे, कुछ 5.25 फीट के होंगे, कुछ 5.5, कुछ 6, कुछ 7. और जबकि मैं पिछले एग्जाम्पल में जाऊंगा और जब ये ग्राफ देखेंगे तो ज़्यादातर बच्चे 4.8 फीट्स 5.2 फीट्स के बीच में ही हैं. तो सारे लोग का जो डेटा पॉइंट्स है मेरे वो नज़दीक में है. अब उसके बाद हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे, जब मैं आपको ये समझा रहा था. अब इसमें देखिए एक फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान से दे सकते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन हमने देखा था, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर है वो वेरिएंस है. वेरिएंस के ऊपर सिंपली आप अंडर रूट लगा देंगे. इफ यू पुट अंडर रूट स्क्वायर का तो एस आ जाएगा और इसका अंडर रूट जो है वो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे देता है. तो ये बहुत सिंपल है. वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको सिंपली ये अंडर रूट और ये बिना अंडर रूट के देखना है. अगर अंडर रूट हटा दिया आपने या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर दिया तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा. वेरिएंस का अगर आपने अंडर रूट कर दिया तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. यहां तक मेरे को लगता है कि क्लास में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. यहां तक का डेटा हम लोग कई बार रिवाइज कर चुके हैं और मेरे ख्याल से वी ऑल हैव क्लैरिटी ऑन दिस. यहां तक कोई डाउट है किसी को? Okay, perfect. No, sir. We did range, standard deviation, and we saw these slides. We saw sample variance, standard deviation. अब देखिए हम थोड़ा सा आउटलायर का इम्पैक्ट पढ़ेंगे. आउटलायर क्या होता है? कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज एन आउटलायर?
So extreme data एक्सट्रीम points. डेटा पॉइंट्स को हम आउटलायर बोलते हैं, जहाँ पे यहाँ पर देखिए पूरी की पूरी क्लास हमारी सेंटर में बैठी हुई है, लेकिन ये दो बंधु जो हैं हमारे बाहर चले गए हैं, तो इनको हम आउटलायर कहते हैं। ये हमारे डेटा को इम्पैक्ट करते हैं। आउटलायर्स को स्टडी करना और आउटलायर को समझना बहुत ज़रूरी है आपके स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि आउटलायर्स जो है ना वो आपके डेटा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले आते हैं। और अगर वो आउटलायर कोई गलती है तो ठीक है, लेकिन अगर आउटलायर एग्जैक्ट डेटा है जिसके कारण ये हो रहा है, तो वो आपके रिसर्च के रिजल्ट्स को अफेक्ट करते हैं, और उसके कारण आपको केयरफुल होकर फिर जाके देखना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाई दिस आउटलायर हैज कम एंड व्हाई इट इज इंपैक्टिंग माय डेटा। जो आपका मीन था उसके कारण असर हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, उसको आपको देखने के लिए इसको स्टडी करना पड़ता है। अब इम्पैक्ट ऑफ आउटलायर्स सेंटर स्प्रेड को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें देखिए ये सारा का सारा डेटा जो है आपका, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये बेसिकली दिस इज एन हिस्टोग्राम ग्राफ। इधर ये फ्रीक्वेंसीज हैं और नीचे डेटा पॉइंट्स हैं। तो 5 से 10, अगर मैं मार्क्स की बात कर लूं कि 50 नंबर का टेस्ट है, 50 नंबर के या 60 मार्क्स का आपका कोई टेस्ट है, और 60 मार्क्स के टेस्ट में जैसे 4 बच्चों ने 5 से 10 के बीच में अंक लिया है, 8 बच्चों ने 15 तक अंक लिए हैं, 20 तक अंक लेने वाले 6 बच्चे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे यहाँ पर कोई जो बिल्कुल बाहर चला गया उसको हम आउटलायर कहते हैं। वो जो 40 50 55 की तरफ जिनके मार्क्स हैं वो आउटलायर्स की तरीके से हैं या वो ज़्यादा हैं, तो वो स्टडी करना है। अगर आपकी क्लास में आपने वैसा पढ़ाया है और कुछ बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, देन इट्स नॉट ए अबनॉर्मैलिटी, ऐसा होगा। लेकिन सपोज अगर आप किसी मेडिसिन का रिसर्च कर रहे हो और बाकी सारे लोगों ने जो सिम्टम्स दिखाए हैं वो यहाँ पर हैं, बट सपोज किसी का, अगर आपको बॉडी टेम्परेचर नापना था किसी मेडिसिन के बाद और ज़्यादातर लोगों ने नॉर्मल टेम्परेचर के आसपास है, बट सपोज एक पेशेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उस मेडिसिन को लेके, तो देन यू नीड टू बी केयरफुल। आपको जाके उसको स्टडी करना है और देखना है कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं आउटलायर्स के। इस पहला डेटा देखिए 21, 20, 22, 25, 21, 23, बहुत परफेक्ट डेटा है। लेकिन उसके बीच में सपोज एक नंबर 9000 आ गया, ये आपके पूरे के पूरे डेटा को खराब कर देगा। एंड यू हैव टू गो एंड फिगर आउट कि क्यों हो रहा है, ये कहाँ से आया, क्या ये गलती है या वाकई में कोई डेटा ऐसा है जिसके कारण ये हो रहा है, क्योंकि ये आपके एवरेज को, हर चीज को हिला के रख देगा। यहाँ पे देखिए 51, 55, 69, 73, 80, 81, ये नॉर्मल डेटा है, उसके अंदर किसी का 3 मार्क्स है। अब ये थ्री स्कोर है आपका। अब ये क्यों है, ये पूरे के पूरे डेटा को आपको चेंज कर देगा। अब इसके कारण आपको यू हैव टू गो एंड चेक आउट कि व्हाई दिस आउटलायर हैज कम, और ये आउटलायर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। यू नीड टू स्टडी दैट। यहाँ पे देखिए हमने जुलाई में किसी साउथ इंडिया की सिटी के टेम्परेचर्स लिए हुए हैं, 26 डिग्रीज, 15 डिग्रीज, 20, ये अलग अलग साल का है, 15, 14, 13, अलग अलग ईयर्स में 13। एक 2011 में यहाँ पर डेटा एंट्री है -350 डिग्रीज, -350 डिग्रीज का यहाँ पर एक डेटा आ गया। अब यहाँ पे 5-6 डेटा आप देख पा रहे हो आंखों से, नहीं तो ऐसे डेटा का जो इम्पैक्ट है उसको दिखाने के लिए हमने, अब इसका जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो देखिए एवरेज निकल के आ रहा है -28 डिग्री। साउथ इंडिया में जुलाई के महीने में -28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कभी नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। हमेशा टेम्परेचर वहाँ पे हल्का सा समर टाइप का ही माहौल रहता है उस समय, और टेम्परेचर जनरली विल रेंज बिटवीन 20 से लेकर 30 के बीच में रेंज करेगी। लेकिन सिंपली एक आउटलायर ने क्या कर दिया कि आपके डेटा को -28 डिग्री सेंटीग्रेड दिखा रहा है वहाँ पे। अब सपोज ये, क्योंकि आपको मालूम है साउथ इंडिया की सिटी है और जुलाई, ये सारी चीज़ें जिसको नहीं मालूम है और ये डेटा मिलता है, तो वो तो ये एज्यूम करेगा कि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती होगी, एंड समवेयर इन नॉर्थ पोल और सम साइड सॉर्ट ऑफ दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम। तो इस तरीके का जो आउटलायर डेटा है, ये आपके ओवरऑल डेटा को खराब करता है, और ये किस तरीके से इंपैक्ट करता है इसको हम आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ आउटलायर्स ऑन सेंटर एंड स्प्रेड। अब ये देखिएगा कि क्या हुआ है, इसी डेटा सेट्स को हमने यहाँ पर रखा हुआ है 15, 20, 26, 30, 31, 31। ये जो पिछले स्लाइड में आपने डेटा देखा हमने उसको ही लिया है, और सबसे ऊपर हमने आउटलायर डेटा को लिया हुआ है। अब आउटलायर डेटा -350 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ आउटलायर डेटा इज देयर, एंड दीज आर द डेटा ऑफ डिफरेंट ईयर्स। दिस इज द डेटा फॉर 2011। अब इसका जब हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने 2 टेबल्स बनाई हुई है, विद आउटलायर एंड विदाउट आउटलायर। एक में हम आउटलायर को ले रहे हैं, एक में हम आउटलायर के बगैर बना रहे हैं। तो जब हमने विद आउटलायर लिया तो मीन मेरा आया था -28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मैंने जब आउटलायर को छोड़ दिया तो मेरा टेम्परेचर आया 25.667। जब मैंने मीडियन को मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं तो विद आउटलायर मीडियन कैसे निकालते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, -350, 15, 20, 26, 30, और उसके बाद बीच वाली वैल्यू जब जाके हमने निकाली तो मीडियन आया 26। अगर मैं उसको छोड़ देता हूं तो मेरा जो मीडियन है वो दोनों को डिवाइड करके 26 और 30 आता है 28.25। मोड को मैं निकालने की कोशिश करता हूं तो 31 इज द मोस्ट
फ्रीक्वेंट डेटा, तो 31 दोनों के केस में मोड निकल के आता है। और रेंज जो है पहले केस में 381, रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम डेटा एंड द मैक्सिमम डेटा। सो रेंज विदाउट आउटलायर आती है 381 एंड सॉरी विथ आउटलायर आती है 381 एंड विदाउट आउटलायर आती है 16 डिग्रीज। अब आप इसको ध्यान से देखिए तो आपको ये समझ में आएगा कि आउटलायर जो है आपके मीन्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। लास्ट क्लास में जो हम चर्चा कर रहे थे बार बार कि मीन मीडियन मोड कहाँ यूज़ करना है, तो अगर आप देखिए कि अगर आपके डेटा में आउटलायर्स हैं तो मीन आपका बहुत गलत हो जाता है। मीडियन और मोड आपके फिर भी सही रह जाते हैं। मीडियन इसलिए, मोड तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मीडियन को एटलीस्ट आप यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपके आउटलायर्स ज़्यादा हों और आपको उसका काम करना हो। मोड का इस्तेमाल तो खैर अलग जगहों पे ही होता है, बट मीडियन कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मीन वेर एवर योर डेटा हैज़ हाई आउटलायर्स। अगर कोई छोटा या बड़ा डेटा पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा अलग है आपके और डेटा सेट से, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर डेटा सेट्स, देन यू नीड टू फाइंड आउट मीडियन इंस्टेड ऑफ योर मीन। वो चीज़ हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है कि देखिए रेंज, क्योंकि ये भी मिनिमम मैक्सिमम या आउटलायर्स को कंसिडर करता है, तो आउटलायर का कितना सीरियस इंपैक्ट आया है यहाँ पे। इट इज शोइंग ए वेरिएशन ऑफ 381 बिकॉज रेंज इज बेसिकली मिनिमम और मैक्सिमम की बात करता है। मीन के अंदर भी आप मिन मैक्स हर डेटा को लेके चलते हैं, तो आउटलायर्स के कारण आपका डेटा बहुत ज़्यादा इंपैक्टेड हो जाएगा। मीडियन इज ए समथिंग जहां पे आउटलायर्स का इंपैक्ट नलीफाई होता है, आउटलायर्स उतना ज़्यादा असर नहीं डाल पाते और वहां पर आपका ज़्यादातर डेटा आपका प्रॉपर निकल के आएगा। इस केस में हमने फिर ये इफेक्ट्स दिखाए हैं कि मीन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय an outlier where you have extreme outlier. These two are comparatively resistant. Range is also affected and standard deviation also gets affected because standard deviation को निकालने के लिए हम mean का इस्तेमाल करते हैं, mean से differences देखते हैं, तो standard deviation also gets affected with your severe outlier impact जो है उसके ऊपर असर डालता है वो। ये आपके लिए जानना जरूरी था। ये देखिए इसके अंदर भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में ये दिखाया है मैंने कि सिंस यहाँ पर मीन है और मीन हमारा यहाँ पर अफेक्ट हो रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारा इंपैक्टेड होता है अगर हमारे डेटा में आउटलायर्स हैं तो आउटलायर्स के लिए हमें केयरफुल रहना है, आउटलायर्स को हमें ध्यान से देखना है। और करण, आपका जो क्वेश्चन था, करण, यू आर एबल टू लिसन टू मी? यस सर, आई एम एबल टू लिसन टू यू। जो आपका क्वेश्चन था कि हम मोड बेसिकली हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज क्यों नहीं ले लेते हैं रादर देन स्क्वायरिंग इट, तो देखिए उसके जो आंसर्स मैंने सीख करने की कोशिश की है तो उसमें सबसे क्लोज जो आता है, जो मेरे को भी थोड़ा लॉजिकल लगता है, उसमें ये कहते हैं ये लोग, स्टैटिस्टिक्स व्हाट डज इट से कि व्हेन यू आर स्क्वेयरिंग द नंबर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आप डिफरेंस को जब स्क्वेयर कर रहे होते हैं तो जो आपके आउटलायर का इंपैक्ट मेनी फोल्ड मल्टीप्लाई होता है, बढ़ जाता है। या बट इज दैट अ गुड थिंग? सर ये मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि दैट्स व्हाट इट डज, बट इज दैट अ गुड थिंग? नहीं, इट्स नॉट अबाउट गुड और बैड करण, इट्स अबाउट योर रिसर्च पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट प्लेस। अगर कोई आउटलायर है, उसका इंपैक्ट आपको नजर आ रहा है बढ़े हुए तरीके से, आप केयरफुल हो जाओगे, यू विल बी मोर केयरफुल टुवर्ड्स योर आउटलायर और आप उसको स्टडी करने की कोशिश करोगे। अदरवाइज अगर ये इंपैक्ट, क्योंकि सी आप एक रिस्पॉन्सिबल रिसर्च करके और कोई कंक्लूजन देने जा रहे हो कंपनी के प्रोडक्शन को या फिर आप किसी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहां पे अगर आपके रिजल्ट्स में कुछ आउटलायर्स हैं तो ये क्या करता है कि इट मेक्स यू मोर कॉशियस एंड सेफ। सो दैट वे बिकॉज दिस इज द ओनली एक्सप्लेनेशन विच आई कुड कम क्लोज टू इट, जो मेरे को भी कन्विंसिंग लग रहा था कि यस दिस कैन बी वन रीजन, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक डेटा मेरा आउटलायर गलत है तो उसके कारण कितना इंपैक्ट आ रहा है मेरे ओवरऑल आंसर्स पे या मेरे कंक्लूजन्स पे, राइट? अब इसके बाद एक 5 क्वारंटाइल्स में थोड़ा सा, सॉरी क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये भी आप लोगों को, यस सर ये मीन और रेंज कैसे निकाला सर आपने आउटलायर में, ये नहीं समझ में आया सर। अच्छा, ओके देखिए रेंज जो होता है ना, रेंज इज बेसिकली, मैं पीछे डेटा पे आता हूँ, ये रेंज जो होता है सबसे छोटा डेटा और सबसे बड़ा डेटा का डिफरेंस होता है। यहाँ पे जो सबसे छोटा डेटा है -350 है और जो सबसे बड़ा डेटा है वो 31 है, तो माइनस जब आप करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाता है, नेगेटिव माइनस नेगेटिव ये ऐड हो जाएगा, तो 350 और 31 विल बिकम 381। ये आप समझ पा रहे हैं? -350 माइनस 31 विल गिव अस 381। दूसरा जो 16 निकला है वो हमने 350 को छोड़ दिया, हम इस आउटलायर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं।
हम आउटलायर को जब कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो हम 15 मेरा मिनिमम डेटा हो जाता है एंड 31 मेरा मैक्सिमम डेटा हो जाता है। 31 और 15 का जब मैं डिफरेंस देखूंगा तो वो 16 आता है। यू आर एबल टू गेट मी? यस सर। सिमिलरली फॉर मीन क्या है, इन सब को मैं ऐड करूंगा, इन सब को ऐड करके कितने डेटा पॉइंट्स है, 3 3 6 1 7 7 से डिवाइड करूंगा। तो जब मैं 350 को कंसिडर करके इस डेटा पॉइंट को 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पे 28 डिग्रीज मेरा आएगा विथ आउटलायर। जब मैं 350 को छोड़ देता हूं और मैं इन सब को ऐड करके और फिर मैं 6 से डिवाइड करता हूं तो आई विल गेट द वैल्यू एज 25.667। ओके सर। ठीक है ना? विद आउटलायर इस 350 डिग्रीज को हम कंसिडर कर रहे हैं, नेगेटिव 350 को, एंड विदाउट आउटलायर में हम 350 को छोड़ दे रहे हैं और बाकी को डेटा को लेके हम ये वैल्यूज निकाल रहे हैं। एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट हियर? आई विल एक्सप्लेन अगेन। इफ यू हैव डाउट्स प्लीज बी वोकल, आप बताओ तभी मुझे पता चलेगा। सो शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. ये हमने देख लिया। अब मैं ना क्वार्टाइल्स परसेंटाइल्स थोड़ा सा आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा बट सम मे नॉट बी नोइंग इट, सो विल जस्ट सी इट। ये देखिए, ये जब हम क्वार्टाइल्स पढ़ते हैं तो क्वार्टाइल इज ऑल्सो बेसिकली, आपने कई बार मार्क्स का भी सुना होगा, आपने आईआईटी के अंदर स्कोरिंग को सुना होगा। दे डोंट कॉल इट परसेंटेज, दे कॉल इट परसेंटाइल्स। और परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल्स ये कैसे कैलकुलेट होते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। बेसिकली क्या है कि इसमें आपको मिनिमम से मैक्सिमम में अरेंज करना है। मीडियन वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होता है। मिनिमम से मैक्सिमम में अरेंज करके जो मिडिल वैल्यू निकलती है, जो बीच की वैल्यू निकलती है, वो ये कह रही होती है कि उसके नीचे 50% डेटा है और उसके ऊपर 50% डेटा है, और इसके कारण उसको मीडियन बोलते हैं। दिस मीडियन पॉइंट इज कॉल्ड एट 50% परसेंटाइल। वो 50% के ऊपर जाके खड़ा होता है, जो मीडियन होता है आपका। इट इज एट 50% पॉइंट, मतलब 50 बच्चों की परफॉर्मेंस या तो उसके बराबर या उसके नीचे है, और 50 बच्चों की परफॉर्मेंस या तो उसके बराबर या उसके ऊपर है, वो बीच वाली वैल्यू है। सो दैट इज कॉल्ड योर मीडियन। उसके बाद हम जब फर्स्ट क्वार्टाइल की कैलकुलेट करने की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टाइल इज बेसिकली वो 25% पे आता है। 25% ऑफ द स्टूडेंट्स या मार्क्स उसके नीचे हैं और 75% बच्चों के मार्क्स उसके ऊपर हैं। अब इसमें आप ये मत कंफ्यूज करिएगा कि अगर 100 नंबर का एग्जाम हुआ है तो जो 25% क्वार्टाइल पे है उसको 25 नंबर मिले हैं, ऐसा मतलब नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से 25 मिलना, लेकिन क्वार्टाइल का मतलब होता है कि अगर 100 बच्चे हैं क्लास में तो जो बच्चे का 25% क्वार्टाइल है उसके नीचे 24 बच्चे, मतलब 25 बच्चे अगर आप माने, या 24 बच्चे उसके बराबर या उसके नीचे हैं और बाकी बच्चे उसके ऊपर हैं या उसके बराबर हैं। मतलब बराबर इसमें मार्क्स इसलिए लेना पड़ता है, वो मैं आपको आगे दिखाता हूं। अभी थर्ड क्वार्टाइल में 75% बच्चे उसके नीचे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको 75% क्वार्टाइल बोलेंगे, और 25% बच्चे उसके आगे जाएंगे तो वो पॉइंट जो है 75% क्वार्टाइल कहलाएगा। आई होप आई हैव डन गिवन एन एग्जांपल। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लेके इस चीज़ को प्रूव करने की कोशिश की है। मैं पीछे आता हूँ एक बार, और अगर आप इसको मैं सारे फेजेस में बांट दूँ तो बेसिकली 4 टुकड़ों में बढ़ जाता है। मीडियन, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल इज एट 25%, मीडियन इज एट 50%, first quartile 25%, median at 50%, third quartile at 75%, and maximum point goes at 100%. तो इस तरीके से क्लास को 4 टुकड़ों में हम बांट सकते हैं, 25 25 25 25, इससे ज़्यादा भी बांट सकते हैं, बट बेसिकली आपको समझने के लिए इतना पर्याप्त है कि अगर हम 4 भागों में बांट के देखें तो इस तरीके से वो बटेगा। हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। ये देखिए, क्लास में बच्चों का स्कोर है 10 11 12 25 25 27, इस तरीके से ये स्कोरिंग मार्क्स हैं, और इस स्कोरिंग मार्क्स को हमने फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने देखा अरेंज किया हुआ है। वंस वी हैव अरेंज्ड इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देयर आर 15 ऑब्जर्वेशंस हियर। 15 ऑब्जर्वेशंस हैं तो 15 + 1/2 अगर मैं करूंगा तो 8th ऑब्जर्वेशन आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th वैल्यू जो है वो हमारा मीडियन बन जाती है। 33 बिकम्स द मीडियन ऑफ माय वैल्यू, और 33 जब मेरा मीडियन है तो वी कैन इजीली से दैट 50% हमारा इस साइड है और 50% हमारा इस साइड है। ये वैल्यू बीच में है। 50% वैल्यू, या यूं कहें कि 7 बच्चे इनसे कम मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और 7 बच्चे इनसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इनका जो परसेंटाइल या क्वार्टाइल हम बोलेंगे 50% की रेंज में आएंगे ये।
और ये मीडियन कहलाएंगे उस डेटा पॉइंट का। अगर हमको उसके बाद फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या करता है कि अब आपको इसके नीचे की जितनी वैल्यूज हैं उनके बीच का, या फिर आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वार्टाइल इज मीडियन बिटवीन द मिनिमम वैल्यू एंड द फर्स्ट मीडियन। इस मीडियन और मिनिमम वैल्यू के बीच की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो वो आपका फर्स्ट क्वार्टाइल बन जाता है। और थर्ड क्वार्टाइल सिमिलरली बिटवीन मीडियन एंड द मैक्सिमम वैल्यू के बीच का जब मीडियन निकालेंगे तो वो आपका थर्ड क्वार्टाइल बन जाता है। यहां पर देखिए ये 33 के नीचे हमारे पास कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर 7 डेटा पॉइंट्स बिलो इट। तो 7 + 1 8/2 फोर्थ डेटा पे हम जाएंगे तो 25 मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल बन जाता है, 25 बिकम्स माय फर्स्ट क्वार्टाइल। सिमिलरली अगर मैं इस साइड जाता हूं तो देन अगेन आई हैव गॉट 7 डेटा पॉइंट्स, 7 + 1/2 गिव्स मी फोर्थ नंबर अगेन, 8/2 फोर्थ, सो 36 बिकम माय थर्ड क्वार्टाइल। तो इस तरीके से आप देखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल जो मिनिमम वैल्यू है 10 है, मैक्सिमम वैल्यू 59 है, मीडियन मेरा 33 है, मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल 25 है एंड माय थर्ड क्वार्टाइल इज 36। और इस तरीके से हमारा ये फाइनल समरी जो निकल के आती है 10, 25, 33, 36 एंड 59, ये मेरे सारे डेटा पॉइंट्स निकल के आ जाते हैं जिनको मैं मिनिमम, फर्स्ट क्वार्टाइल, मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड माय मैक्सिमम वैल्यू बोल सकते हैं। गाइस किसी को डाउट है तो प्लीज पूछना मेरे को। इज इट क्लियर, या आप चाहते हैं मैं दोबारा कुछ बताऊं, या वैसे तो आसान है ये, बट इफ एनीबडी हैज डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। थोड़ा सा बाहर आता हूँ, मेरी क्लास में लोग बच्चे हैं, कहीं मैं खुद को तो नहीं पढ़ा रहा। यस आई हैव पीपल हियर। सो गाइस यहाँ तक ठीक है, आप लोगों को ठीक लग रहा है या यू वांट समथिंग टू बी री एक्सप्लेन्ड? No, sir. Everything is clear. Okay, good. सो द क्वार्टाइल थिंग्स आर ओके। अब हम जाएंगे, एक बॉक्स प्लॉट का कॉन्सेप्ट आता है, मैं इसलिए बता देना चाह रहा हूँ कि शायद कुछ लोग आपके इस एरिया में जाएंगे तो एटलीस्ट उनको नया ना लगे, दो हमारे इस सिलेबस में नहीं है बट आई हैव गिवन। जब आपका ये मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यूज निकल जाती है तो इसके साथ एक बॉक्स प्लॉट प्लॉटिंग होती है। बॉक्स प्लॉट प्लॉटिंग इज बेसिकली जो एंड्स होते हैं वो मिनिमम वो इस तरीके के वर्टिकल रोज से दिखाए जाते हैं, बीच में एक जो बॉक्स बनता है उसके सेंटर वाला पार्ट जो है वो मीडियन कहलाता है। अगर आप नीचे देखेंगे तो 33, और फिर ये बॉक्स के जो एंड्स है दिस इज फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल्स 25 एंड 36 एंड 10 एंड 59। 10 एंड 59 जो है ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज हो जाती हैं इस डेटा पॉइंट की, इसको बॉक्स प्लॉटिंग कहते हैं। और ये भी शायद कहीं किसी को आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी आगे, तो आप देख लेना इफ समबडी स्टडीज सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और अदर थिंग्स, तो बॉक्स प्लॉट शायद आपको मिलेगा। तो ये बेसिकली बॉक्स प्लॉटिंग है। और इसके बाद हम इसके अंदर जो ये लाइन्स हैं इनको विस्कर्स बोलते हैं। और इंटर क्वार्टाइल रेंज एक इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटर क्वार्टाइल रेंज की जब हम बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल। जो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल निकल के आया था यहाँ पे 25 और 36, वी गॉट द फर्स्ट क्वार्टाइल इज 25, थर्ड क्वार्टाइल इज 36। 25 और 36 का जो डिफरेंस है 11, वो इस बॉक्स की विड्थ होती है। यहाँ पर आप देखिए 25 एंड 36, इसकी जो डिफरेंस है उसको हम इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं। और आउटलायर्स का आइडेंटिफिकेशन, ये भी एक चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देना चाहूंगा। आउटलायर्स जब आप एक डेटा के अंदर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उसके दो फॉर्मूलाज हैं। वन इज Q1 विच इज फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस 1.5 टाइम्स योर इंटर क्वार्टाइल रेंज, और इट शुड बी लेस देन योर। अगर आपका डेटा इस वैल्यू से छोटा है तो उसको हम आउटलायर बोलेंगे। हम ये कहेंगे कि वो डेटा जो है मेरे एक्चुअल डेटा के बाहर जा रहा है। जैसे किसी डेटा पॉइंट में अगर मुझे आउटलायर फाइंड आउट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी डेटा की बात करूं 10, 11, 12, 25, 25, 27, 31, 33, ये जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है स्टूडेंट्स के द्वारा, अगर मुझे इसके अंदर आउटलायर ढूंढना हो कि क्या इस डेटा के अंदर कोई आउटलायर है, तो the definition basically is कि data value which is less than quartile 1 minus 1.5 into interquartile range or quartile 3 plus 1.5 times of interquartile range is called an outlier.
तो इसमें स्टैटिस्टिक्स इस तरीके से आउटलायर को स्टडी करके और उसको निकाल के और फिर से डेटा को स्टडी करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यूज आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, फर्स्ट क्वार्टाइल वाज 25 माइनस 1.5 इंटू 11, और दूसरा डेटा जो हमारा ग्रेटर देन में निकाला है हमने 36 प्लस 1.5 इंटू 11, ये दोनों के डेटा निकल के आए हैं 8.5 एंड 52.5। तो अगर कोई डेटा इस डेटा रेंज में मेरा 8.5 के नीचे है तो मैं उसको आउटलायर बोलूंगा, और अगर कोई मेरा डेटा पॉइंट 52.5 के ऊपर है तो मैं उसको आउटलायर बोलना चाहूंगा, विल बी कॉल्ड एज एन आउटलायर। और इस डेटा को जब मैं स्टडी करूंगा तो आप देखेंगे कि 8.5 से छोटा मेरा कोई डेटा नहीं है, तो आई कैन कंफर्टेबली से दैट कि ये मेरा सिमेट्रिकल डेटा है और इसमें सारा डेटा जो है मेरे इस आउटलायर टेस्टिंग के अंदर फॉल कर रहा है ऑन द लोअर साइड। जब मैं अपर साइड में देखने की कोशिश करता हूं तो आई सी दैट देयर इज अ डेटा ऑफ 59, और मेरा ग्रेटर देन 52.5 को मेरे को आउटलायर कंसिडर करना है, तो 52.5 से ज़्यादा है 59, तो इस डेटा पॉइंट के अंदर 59 विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटलायर। और जो मेरा नया इसके बाद जब मैं नया बॉक्स प्लॉट अपना रिवाइज करके बनाऊंगा तो उस बॉक्स प्लॉट में ये आप देखिए कि 59 को हमने सिंस आउटलायर प्लॉट किया है तो मेरा न्यू मैक्सिमम जो है इस डेटा का 50 कहलाएगा। सो माई डेटा विल देन फॉल बिटवीन 10 एंड 50, तो मेरा जो नया मैक्स है वो 50 पॉइंट पे आ जाएगा, रादर देन 59 तक मेरी लाइन ये नहीं जाएगी, ये 50 पे आ जाएगी। सो माय न्यू डेटा विल हैव 50 and this side 10 was okay and other 3 points will also be okay, Q1, Q3 and median will be fine with me, minimum, maximum, Q1, Q3 and median all will be there। बस मेरा जो max value है that will be have a new max value of 50, और वो 50 वैल्यू हम यहाँ पर ले लेंगे एंड 59 विल बी शोन एज एन आउटलायर। दिस इज अ स्मॉल एग्जाम्पल जिससे आप आउटलायर को समझें, अपने डेटा के अंदर आउटलायर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, द वे इट इज बीइंग आइडेंटिफाइड, और किस तरीके से हम फिर डेटा को अपनी सिमेट्रिकल डेटा बना के और उसको स्टडी कर सकते हैं फिर से, वो उस चीज को देखने के लिए दिस टेक्निक विल हेल्प यू ऑल। Next we go on, what is percentile? Describe the percentiles of data values that fall at or below another value। ठीक है, जो क्वार्टाइल मैंने आपको बताया, परसेंटाइल भी मोटा मोटी वैसे ही है, इट इज वेरी मच सिमिलर। ये हमने फिर से एक डेटा पॉइंट लेके उसको थोड़ा समझाया। देयर इज 15 स्टूडेंट्स हैं, 50 के स्कोर में इनके अलग अलग मार्क्स हैं, क्लास का साइज 15 है, एंड नाउ टू फिगर आउट परसेंटाइल वैसे ही करना है बिल्कुल, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लगा देंगे 15 से लेके 43 तक की जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है। उसके बाद हम देखेंगे मिडिल वैल्यू जो निकलेगी, जो 35 निकली, 35 मार्क्स पाने वाला जो बच्चा है वो इसका 50th परसेंटाइल हो जाता है। अब मैंने क्यों बोला था कि इसके बराबर भी, क्योंकि देयर इज अ चांस कि उससे नीचे भी एक बच्चा हो जिसके 35 मार्क्स हैं। सो या तो इसके बराबर या इससे कम पाने वाले इस साइड रहेंगे, या तो इसके बराबर और इससे ज़्यादा पाने वाले इस साइड रहेंगे। So whoever has scored equal or more will be on the right hand side, equal or less will be on the left hand side, and this will give me the 50th percentile of the class. And similarly whatever percentile you are looking for, you can figure it out. इसमें हमने वैसे ही फर्स्ट थर्ड क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किए हैं। 75th क्वार्टाइल पे अगर आप देखेंगे तो Q3 क्वार्टाइल इज 38 मार्क्स ऑब्टेन करने वाला स्टूडेंट। तो आप एक चीज़ और देखिएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 50 में से इस बच्चे को मिले हैं 35 मार्क्स, विच इज़ लाइक 70% ऑफ द मार्क्स, बट अगर आप परसेंटाइल टर्म्स में देखें तो 50 परसेंटाइल पे है ये। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटेज। आई होप दिस बिकम्स क्लियर टू यू ऑल। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि परसेंटेज है या परसेंटाइल है। IITs में आप जाएंगे बड़े इंस्टीट्यूट्स के अंदर, दिस इज ऑलवेज लाइक मेनी इंस्टीट्यूट्स लाइक दैट, दे ऑलवेज डू द मार्किंग ऑन परसेंटाइल बेसिस। परसेंटेज में मार्किंग नहीं होती है वहाँ पे। कई बार यू गेट 100 परसेंटाइल, दो यू वुड हैव स्कोर्ड 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, 20 में से 100 मिले हैं, बट ये यू वुड बी इन बिटवीन 90 to 100 परसेंटाइल के बीच में आप आएंगे। पेपर बहुत टफ आया है, तो ऐसा नहीं कि आपको परसेंटेज देख के आपको फेल या पास किया जाता है। इट इज बेसिकली डन ऑन द परसेंटाइल बेसिस। यहाँ तक बच्चों कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लो। इज इट क्लियर? हेलो सर। इज क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, चलो गुड। उसके बाद देखिए हम आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्री एंड स्क्यूनेस पे। ये हम जो पिछली क्लास में समझने की कोशिश कर रहे थे, थोड़ा उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिया है। ये आपका
हिस्टोग्राम या बार चार्ट्स हैं, और इसके अंदर जो होती है ये प्लॉटिंग होती है कि किस स्टूडेंट ने, अगर मेरा 0 से 50 मार्क्स का ही डिस्ट्रीब्यूशन देखना है तो पहले 5 मार्क्स में कितने बच्चे हैं, फिर 10 मार्क्स में कितने बच्चे हैं, उस तरीके से हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, और इसी के ऊपर जब हम इसका एक कर्व ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा एक नॉर्मल कर्व हो जाता है। अब इसमें जब आपको ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मीन वैल्यू होती है या मीडियन वैल्यू होती है उसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में बिल्कुल बराबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अगर दोनों साइड उसके सिमेट्रिकल हैं, बराबर हैं, तो वो नॉर्मल कर्व कहलाएगा और उसमें दोनों साइड ऑफ का डेटा प्रॉपर बटा हुआ होगा। अब ये देखिए एक ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का एक एग्जांपल है जिसमें ये सिमेट्री नहीं है, ये डेटा जो है स्क्यूड है, और इसमें नीचे जो हमने दो एग्जांपल दिए हैं इसमें स्क्यूड टू द लेफ्ट एंड स्क्यूड टू द राइट है। लेफ्ट स्क्यूड उसको बोलते हैं जिसमें लेफ्ट में उसकी टेल बड़ी होती है, जिस तरफ भी टेल फॉर्मेशन हो जाए, यहाँ पे प्रॉपर टेल्स हैं दोनों साइड, अगर एक तरफ की टेल बड़ी हो जाती है तो उसको हम उस तरफ स्क्यूड बोलते हैं। लाइक इन दिस एग्जांपल द टेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज बिगर, मोर पीपल आर स्कोरिंग मार्क्स जो मीन से लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे, और इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन को वेयर मोर डेटा या मोर स्टूडेंट्स आर फॉलोइंग ऑन द राइट हैंड साइड विल कॉल इट स्क्यूड टू द राइट, राइट हैंड साइड में स्क्यूड डेटा इसको बोलेंगे। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशंस अवेलेबल, होप इससे आपको क्लैरिटी आ रही है। अब इसमें देखिए हमने यहाँ पर जब पहला वाला डेटा आप देख रहे हैं तो यहाँ पे इस डेटा के केस में व्हाट हैपेंस इज कि मीन बिकम्स इक्वल टू मीडियन, बिल्कुल सेंटर पॉइंट जो होता है 12 नंबर अगर यहाँ पर हम लें तो दिस बिकम्स, इस डेटा पॉइंट में 12 बिकम्स द मीन, 12 बिकम्स द मीडियन, और उससे आधे बच्चे इस तरफ होंगे, उसके आधे बच्चे इस तरफ होंगे। जब मेरा डेटा इस तरफ स्क्यूड होता है तो देखिए व्हाट हैपेंस कि मीडियन जो है, मीडियन क्योंकि आप लो से इंक्रीजिंग की तरफ आप अरेंज करेंगे, तो व्हेनेवर डेटा इज स्क्यूड टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ जब आपका डेटा स्क्यूड होगा तो आपका मीडियन जो है वो बड़ी वैल्यू निकलती है, मीन आपका छोटा वैल्यू निकल जाता है। मीन क्यों छोटा निकलता है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने कम मार्क्स ऑब्टेन किए हुए होते हैं और आप एवरेज ले रहे होते हो। मीडियन क्या करता है, उनको अरेंज करता है और उसके बाद वो सेंटर पॉइंट पे जाता है, तो मीडियन की वैल्यू जो है आपकी वो ज़्यादा निकलेगी और मीन की वैल्यू आपकी छोटी निकलेगी whenever your data is skewed on the left. And similarly for right hand skewing में क्या होगा, जब आपका नंबर ज़्यादा स्कोर करने वाले ज़्यादा लोग हैं तो आपका मीन जो है वो ज़्यादा की तरफ बढ़ जाएगा, ग्रेटर वैल्यू की तरफ बढ़ जाएगा, and it will be more than your median. So this is the 3 points to be remembered here. सिमेट्रिकल डेटा में मीन मीडियन बराबर होगा। जब लेफ्ट स्क्यूड है, यहाँ पर आप देखिए तो मीन आपका जनरली मूव कर रहा है, मीन जैसे ही आपकी कम स्कोरिंग क्लास आई तो मीन आपका लेफ्ट की तरफ चला गया, जब भी आपकी हाई स्कोरिंग क्लास है तो मीन आपका हाई की तरफ चला गया। सो द मीन विल बी ग्रेटर व्हेन यू हैव राइट स्क्यूड एंड मीन विल बी लेस व्हेन यू हैव लेफ्ट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ तक जो भी हमने डेटा पढ़ा है अभी तक, वॉट एवर वी हैव स्टडीड, इट इज़ ओनली वन डेटा पॉइंट। हम एक डेटा की बात करते आए हैं, चाहे वो बच्चों की हाइट हो, चाहे वो बच्चों के मार्क्स हो, चाहे वो बच्चों का वेट हो, वो या IQ, जो भी चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन वेरिएबल, और वन वेरिएबल और उसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते आए हैं यहाँ तक। तो इसमें हमारे को ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो वैलिड थी, लेकिन अब हम इसके आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि नाउ व्हेन आवर डेटा हैज़ गॉट टू वेरिएबल्स, लाइक यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है कि हाइट ऑफ ट्री है एंड एज ऑफ ट्री है। नाउ वी कैन से दैट, इजीली से दैट जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ट्री की हाइट बढ़ती है, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो बढ़ना धीरे हो जाता है और फिर वो नहीं बढ़ता है। तो दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू डेटा पॉइंट्स। पेड़ों की संख्या है, पेड़ों की संख्या पहले भी थी, उसमें हम उनकी संख्या पे सिर्फ हाइट लेते थे या फिर एज लेते थे। यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टडी किया है। अब इसमें एक चीज़ देखिएगा, एक चीज़ होती है रिस्पॉन्स वेरिएबल और एक होता है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल उसका आपकी जो रिस्पॉन्सेज हैं, जैसे मान लीजिए सिर्फ आपने हाइट नापी है कहीं पे और आपको अलग अलग हाइट के ट्रीज मिल गए हैं, अब आप उन हाइट के ट्रीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इन पेड़ों की हाइट अलग अलग क्यों है, तो फिर आपने उसको जब देखा तो एज उसका एक्सप्लेनेशन निकला कि भाई जिसकी उम्र ज़्यादा थी वो ज़्यादा बड़ा पेड़ है, जिसकी उम्र बिल्कुल कम है वो छोटा बड़ा पेड़ है, अभी जिसको लगाया वो बिल्कुल छोटा है। सो दिस बिकम्स एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। दिस एक्सप्लेन्स दैट बिकॉज ऑफ एज वी आर फाइंडिंग द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द ट्रीज। So we call this as a response variable and we call this as an explanatory variable, and when we plot it and draw a graph we get something like this,
and we are able to explain the two variables and the relationship between the two. अब इसको जब हम टू वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे होते हैं तो बेसिकली स्कैटर प्लॉट बनते हैं। हम इस तरीके से अपने ग्राफ को, जैसे अभी अब हमने जो पेड़ का एग्जाम्पल लिया, या फिर हमने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है कि बच्चों के मार्क्स और उन्होंने कितने आवर्स स्पेंड किए हैं पढ़ने में, कौन कितना पढ़ रहा था और उसके कंपैरिजन में कितने मार्क्स मिले, और ये हमारी क्लास में जितने भी 50-60 बच्चे हैं उनके मार्क्स को हमने प्लॉट कर लिया। इनके मार्क्स को प्लॉट कर लिया, सेम यहाँ पे भी प्लॉट किया। यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। जो बच्चा 14 आवर्स पढ़ रहा था उसके 62% मार्क्स आए हैं, और जो बच्चा डेली 5.9 आवर्स पढ़ रहा था उसके 30% मार्क्स आए हैं। तो ये जब किसी भी डेटा पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे, इट विल गिव यू अ रिलेशनशिप बिटवीन द टू। इट विल गिव दैट व्हाट स्कोर ही हैज गॉट इन द एग्जाम एंड हाउ मेनी आवर्स ही हैज बीन स्पेंडिंग ऑन स्टडीज। इनके बीच में कोरिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है। जो ज़्यादा पढ़ा है उसको ज़्यादा मार्क्स मिले हैं, जिन्होंने कम पढ़ा है उनको कम मार्क्स मिले हैं। मार्क्स इसके अलावा भी कई चीज़ों पे हो सकता है, टीचर की क्वालिटी पे हो सकता है, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग पे हो सकता है, इंटरेस्ट पे हो सकता है, बट यहाँ हम उन सारी चीज़ों को छोड़ रहे हैं। वी आर जस्ट स्टडिंग 2 फैक्टर्स कि नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट एंड द टेस्ट स्कोर। जब इन 2 वेरिएबल्स को हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और उस डेटा को हमने प्लॉट किया स्कैटर प्लॉट पे, तो हमको ये डेटा इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा। दो चीज़ें कह रहा है कि जैसे जैसे घंटे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे स्कोर बढ़ रहा है। जिसका सबसे कम आवर्स है उसी के सबसे कम मार्क्स हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम 2 वेरिएबल्स के बीच में स्टडी करके एस्टैब्लिश करते हैं। इसमें हमने बताया एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड रिस्पॉन्स वेरिएबल। अब इसके अलावा भी देखिए, कई बार आप डेटा में कुछ ऐसी चीज़ों को भी स्टडी करने की कोशिश करेंगे जो आपको एक्सप्लेनेटरी नहीं लगेगा। जैसे किसी टीम का फुटबॉल स्कोर में कितने स्कोर किए और बास्केटबॉल में कितने स्कोर किए, इनका दोनों का आपस में एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है। बाद में आप भले उसका रिलेशनशिप निकाल लें कि उनकी फिटमेंट थी, उनकी हाइट थी, व्हाटएवर, बट at times you can also try to figure out relationship between 2 non-related things जो कि explanation और response के रूप में ना हो। हम ऐसे भी काम करते हैं। तो जब वो correlation establish कर रहे हैं, that is not necessary that you will always have an explanatory variable and a response variable. This is not always necessary. We need to know this. अब उसके बाद हम कोरिलेशन पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स कि व्हाट इज ए कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन tells you about the direction and strength of a linear relationship shared between 2 quantitative variables। 2 वेरिएबल के बीच में जब रिलेशनशिप स्टैब्लिश होती है उसको जो है वो कोरिलेशन जो वर्ड है, दोनों के बीच का संबंध, रिलेशन इज संबंध एंड को मीन्स आपस में, उनके आपस के संबंध को स्थापित करता है। इसको स्मॉल आर के द्वारा हम शो करते हैं, और स्मॉल आर के द्वारा हम शो करके उसके बीच में हम उनके 2 चीज़ों को रिलेशनशिप के अंदर वो बताता है। एक तो उसकी दिशा बताता है और एक उसका स्ट्रेंथ बताता है। हम आगे आते हैं और इसको थोड़ा और समझते हैं। कोरिलेशन देखिए, यहाँ पर अगर ये मेरा ग्राफ इस तरीके से प्लॉट हो रहा है तो ये बताता है कि कोरिलेशन जो है पॉजिटिव है। मतलब अगर मैं एक चीज़ बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है। मैं ज़्यादा घंटे पढ़ रहा हूँ तो मेरे को मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है ये नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रही है, इट इज़ शोइंग नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन डेटा पॉइंट्स जो हैं जो स्प्रेड दिख रहे हैं। और अगर मेरा r+1 है तो इसका मतलब वो सारे के सारे एक ही लाइन पे फॉल करेंगे। जितना पढ़ेगा उतना मार्क्स, जितना पढ़ाई बढ़ती जा रही है मार्क्स। इसमें थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे दिखेगा कि सेम पढ़ाई के बावजूद जरा सा मार्क्स में अंतर आ रहा है, बट व्हेन इट इज फॉलोइंग ऑन अ सिंगल लाइन, कोरिलेशन अगर 1 हो गया, इफ कोरिलेशन इज +1 तो इट शोज दैट देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, या फिर इस केस में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उससे मार्क्स हमारे गिर रहे हैं। सपोज if you are spending time on Facebook, the more we spend our time on Facebook, the lesser marks we are getting। अगर ये कोरिलेशन हमारा निकलता है तो यहाँ पर देखिए ये है नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, जिसमें हम ये कह सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ प्रेडिक्शन की कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस केस में भी विल बी वेरी पॉजिटिवली सेइंग कि इफ यू आर डूइंग दिस यू विल गेट दिस रिजल्ट। अगर आप ये वाली खाद इतने ग्राम डालेंगे तो पौधा इतना हाइट लेगा। अगर आपने गेहूं के पर एकड़ में 40 kg DAP डाला तो उससे आपकी ईल्ड जो है 15 किलो बढ़ेगी। इस तरीके का डेटा अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो आप इस तरीके के एग्जांपल्स कॉन्फिडेंटली अपने रिसर्च के बाद बता सकते हैं कि ये बिल्कुल पॉजिटिव कोरिलेशन है। गाइस यहाँ तक क्लियर है? किसी को कुछ डाउट्स हो तो प्लीज पूछिएगा। मैं यहाँ पर ही स्टॉप करूंगा, इसको एक और दिखा देता हूँ आपको, फिर विल हैव चैट फॉर फ्यू मिनट्स। यहाँ पे हमने देखिए कोरिलेशंस को अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की है। R = 0, कोई कोरिलेशन नहीं है, ये डेटा कहीं का कहीं जा रहा है। कम पढ़ाई की तो भी ज़्यादा नंबर, ज़्यादा पढ़ाई की तो भी कम नंबर,
आई डोंट नो, मतलब इसको हम कुछ कह नहीं सकते, आप पढ़ाई और नंबर का मैंने ऐसे बोल दिया, बट दिस डेटा बेसिकली इज नॉट टॉकिंग एनी सेंस। ये डेटा आपको कोई कोरिलेशन नहीं बता रहा, और ऐसे डेटा स्प्रेड जब आपको मिलेगा तो आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल पाएंगे। ये देखिए इस तरफ जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बनता जा रहा है और स्ट्रांग होता जा रहा है। 0.4 का आर है, आर 0.4 निकलेगा इस डेटा के लिए। आर 0.4 जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन से दैट देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन ऑफ कोर्स, बट इट इज नॉट अ स्ट्रांग कोरिलेशन। यहाँ पर जब 0.7 हुआ तो यू कैन से यस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड आई कैन सी सम स्ट्रेंथ देयर। When r is equal to 1 we can say it is a perfectly positive correlation। बिल्कुल सही है, जो बात मैं कह रहा हूँ it is 100% right। ये यहाँ पर आ रहा है। इस केस में जब आप इस तरफ जाएंगे तो you can say कि this is a negative correlation। मैं x axis पे कुछ भी बढ़ाता हूँ तो y axis मेरा कम होने लगता है and it starts falling। y axis जब मेरा x axis 1 है तो y axis बहुत ज़्यादा है, लेकिन x axis की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ा रहा हूँ मेरा y axis गिरता चला जा रहा है। दिस इज शोइंग अ नेगेटिव कोरिलेशन, मेरा नेगेटिव होता चला जा रहा है, बट हियर आई डोंट हैव वेरी मच स्ट्रॉन्ग एज डेटा इज स्प्रेड आउट। यहाँ पर इट इज स्ट्रॉन्ग एंड हियर इट इज परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। वट एवर आई डू इट हैज़ टू कम डाउन। तो कोई चीज़ अगर आपको कम करनी है, पेशेंट का टेम्परेचर कम करना है, तो क्रोसिन दे रहा हूँ तो उसकी टेम्परेचर नीचे जा रही है, यू कैन स्टैब्लिश अ परफेक्ट कोरिलेशन कि मैंने हाफ डोज दी, 3 घंटे बाद डोज दी तो वो उसके अंदर बेटरमेंट आ रही है, उसका टेम्परेचर फॉल कर रहा है बॉडी का। सो वी कैन से दैट द डोसेज इज वर्किंग फाइन। I'm just giving some examples जो आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करने में हेल्प करेगा। I'll just skip it. I'm left with only few slides after that. Correlation के बाद there is not much of left. इसके बाद हम आपको ये सिखा देंगे कि correlation कैसे निकाला जाता है, और उसके बाद हम prediction सिखा देंगे कि कैसे आप डेटा को predict करेंगे। So यहाँ तक आप लोगों को ठीक लगा है क्या? You guys are able to understand? Since there is no response, Yes, sir. it is difficult. Yes, to sir. understand. Okay. Thank you. So in next class मैं फिर आपको correlation से R का कैलकुलेशन सिखा के लाइन बनाना सिखा दूंगा, जहां पे आप डेटा से लाइन बना सकते हैं, और लाइन बनाने के बाद आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि जो मैं आप X इनपुट दे रहे हैं तो Y इनपुट क्या निकलेगा। मतलब बच्चे ने अगर 8 घंटे पढ़ा तो कितने मार्क्स आएंगे, आप कॉन्फिडेंस से कह पाओगे। अगर उसने 14 घंटे पढ़ा तो उसके कितने मार्क्स आने चाहिए। वैसा अगर आप एक इक्वेशन बना पाए तो यू विल बी एबल टू से कॉन्फिडेंटली कि ये कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। फॉर मेडिसिन यू कैन एस्टैब्लिश, फॉर फार्म यील्ड्स यू कैन एस्टैब्लिश। सो ये हम अगली क्लास में इसको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और मैं अपलोड कर देता हूँ ये पीपीटी। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू गाइज। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you guys, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Sir. Thank you, sir. Thank you. Sir, Tarun, sir. हाँ तरुण बताओ। तरुण मैं आज चेक करूंगा एक बार, मैं उनसे एक बार और पूछता हूँ, है ना, क्योंकि उनका कोई रिस्पांस आया नहीं। उन्होंने मेरे को बोला था कि दे हैव अ मीटिंग विद डीन सर एंड ही विल लेट अस नो, बट ही डिडंट टेल मी, सो आई विल आस्क हिम टुडे एंड आई विल अपडेट यू। Yes, sir. Okay. Thank you, sir. थैंक यू। So guys, we are starting our lecture. Last class we actually okay, you are able to see the screen, it is clear to you guys, and am I audible, clearly audible to you all? Yes, sir.
Okay, thank you. So guys, पिछली last class तक, what we tried to do in the last lecture was we are trying to understand overall what is statistics, because elementary statistics is the is part of your this program, and in this unit we are studying the basics of statistics. In that we started knowing what is data, what is statistics, what is information. Then we studied the central tendencies, we saw the dispersions or the standard deviation, range, percentile, we all looked at those things. Now where we ended, basically we were started looking at the two variable stuff. इसके पहले जो हम कर रहे थे, before this what we were doing, we were looking at data on one variable point. एक variable देख रहे थे, like age of number of marks obtained by students in a class test, एक variable हो गया. Age of a certain group of people, weight of certain group of people, ये सारा कुछ एक वेरिएबल हो गया. These are one variable. Now we were trying to study the two variable stuff. दो वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को हम स्टडी कर रहे थे, जिसके आधार पे if we are able to figure out that how we can study this relationship and what is the relationship, and then basis the study we can draw a regression line which can help us make predictions or projections. This was our aim. ये हमारा aim था. तो इसमें if you see this graph, we are talking about two variables now. One is height of tree on the y-axis, and x-axis पे है age of tree. So there is the points are plotted here, and we can see that there is a relationship. As the age increases, the height of the tree is increasing. But after a certain point of time, the rate of increase slows down. So this is our normal observation also. When we plant something, we see that it starts growing in height, and as and when the time passes, the height increases. So basically there is a relationship between the height of the tree and age of the tree. In this case, on the y-axis we have height of the tree, which is a response variable, and on the x-axis we have explanatory variable, like the height of the tree is being explained by the age of the tree. If we see a very high tree, we can make a mota-moti guess, we can make a rough guess that okay, this is the age of the tree. But if we have proper data, we can also give an idea, like if the height of the tree is 3 feet, maybe the age is 2 years. If the height is 6 feet, maybe the age is 5 years. So we can make a prediction. यहाँ पर भी अगर आप, you can see x-axis and y-axis. If you see the age of tree is 5 years, if you say the age here 5 years, if you correspond it, it goes to 15 inches. If you go to 10 years, then maybe it goes to 20. So this is the increase in the height with the passage of age. So here we are plotting the relationship between the two. Now we move ahead, and we studied the relationship. Here what we plotted was the test score of students and number of hours spent studying, and we made plotting for around 50-60 students, and we saw that there is a positive correlation, like the more the student is studying, the more he is getting the marks. Here a particular student's marks we have plotted and seen that 14 hours he is studying and he scores 62% marks. Marks are on the y-axis, and on the x-axis we have the hours spent studying. So 14 hours उसने पढ़ाई की है, he scores 62% marks. In the second graph we see he has studied for 5.9 hours and he scores 30% marks. So this is basically we are plotting the students on two things, and we try to see that whether there is any correlation or not, and from this plotting we can see that there is a positive correlation. As and when the hours of study is increasing, the test scores are also increasing. So we see that there is a positive correlation between the two. Going to the next slide, we call one the response variable and the other the explanatory variables. Very similar things we have already discussed. Here what I have put a point of caution, that it is not necessary that we'll always have these two there. Like the response variable and explanatory variable, most of the times you'll find it, but it is not 100% of the time. Sometimes you may not be able to establish an explanation for what is happening to one factor, but still we may get a relationship, but you may not be able to explain it, but yet we may find a relationship between the two values. Now, to mathematically study this relationship in statistics, we have something called correlation, which is represented by small r. And how we define it? The correlation tells you about the direction and strength of a linear
रिलेशनशिप शेयर्ड बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जो है उसमें उसका जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन है वो दोनों चीजें कोरिलेशन बताता है. कोरिलेशन विल टेल यू अबाउट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ. बोथ थिंग्स यू विल कम टू नो. हाउ विल कम टू नो? if it is upward moving arrow, this shows a positive correlation. In the next one, if we see downward moving arrow, this shows a negative correlation. And if the spread is there in the data, like all the points are not falling on a straight line, then though it is a positive correlation, but it is not a very strong correlation. But if everything is falling on one straight line, we call it +1, which is a very strong correlation. Similarly, on the negative side, if the data is spread, then we say that there is a correlation, but it is not very strong. But if every point is falling on a straight line, we call it the best correlation, though it is in negative direction. So direction is negative. With anything, you increase the x-axis, y-axis decreases. You keep on increasing the x-axis, the y-axis values will keep falling. So there is a negative relationship. And if it is -1, then it is the perfect negative correlation, that if you increase this, this is going to definitely fall by a certain point of value. अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर देखिए इस ग्राफ में what I have tried to explain is the central value which is r is equal to 0. The data plotting here has no correlation. यहाँ पे कुछ भी आप डाल रहे हैं वो आपस में correlated नहीं है. लेकिन जब हम इसके आगे प्लॉटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे r is equal to 0.4, it shows a positive correlation. When you increase x-axis, y-axis values are also increasing. But the spread is more. So spread is more, which shows that there is the strength of the correlation is not very strong, but direction is positive. Next graph we see it is 0.7, which shows that the direction is positive and the strength is more than 0.4. The data is coming closer to the line. And when we go to the r is equal to 1, we see that all the data is lying on the straight line, which shows that the direction of the relationship is positive and correlation is perfect. It is 1. If we increase 1 unit of x, 1 unit of y will increase. If we increase 1 unit, 2 unit of x, 2 units of y will increase. And there is a perfect correlation, which we can say this here. And if you see the graphs here, r is equal to -4, which shows that there is a negative correlation. With the increase in x, the value of y is falling. When we have maximum x here, it has got minimum y. When we have least x here, we have got high y value. So it is showing that we have got a negative correlation here. The values are falling. One value is increasing, the other dependent value is falling. But in the first one, we see that the spread is high. Here the spread is less, and here spread is least, which shows that it is a perfect negative correlation. Now we have a formula of correlation. We'll have some data and we'll try to calculate the correlation. हम calculate करेंगे correlation. उसकी एक examples हम आपको दिखाएंगे. मैं अभी इसके बाहर आता हूँ थोड़ी देर के लिए. 10 हो गए, हम अटेंडेंस भी ले लेंगे. और इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो तरीके हैं ये मैं आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि यू शुड नो. बट देन आई विल शो यू इन एक्सेल कि कितनी आसानी से आप इन वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं और रिजल्ट्स निकाल सकते हैं. बट थ्योरी आपको जानना इसलिए जरूरी है सो दैट यू कैन अप्लाई द राइट टूल्स एट द राइट प्लेस. एंड एक्सेल बाय एक्सेल, इन एक्सेल आई विल गिव यू एन एग्जांपल जहाँ पे हम इसी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे 2 मिनट के अंदर. ये हमारी सारी वैल्यूज जो इतनी बड़े बड़े फॉर्मूलाज लग रहे हैं, यू डोंट नीड टू एक्चुअली रिमेंबर इट, बट यू शुड अंडरस्टैंड द फॉर्मूलाज. कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ेगी, बट व्हेन एक्सेल इज विद यू, यू विल बी एबल टू डू इट वेरी क्विकली. दैट विल डू विद अ डेमोन्स्ट्रेशन. विल टेक द अटेंडेंस. अब ये कोरिलेशन का देखिए, इसमें फॉर्मूला आ गया. कोरिलेशन के फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट फॉर्मूला. एक बार आप इसको देखने की कोशिश करिए. आर जो कोरिलेशन है ये एस्टैब्लिश कर रहा है दो डेटा के बीच में. जैसे आपने अभी ये वैल्यूज देखी थी, आर इज इक्वल टू 0.4, 0.7, -0.7. तो वो निकालने के लिए जो तरीका है वो ये फॉर्मूला है 1/n-1 sx sy, वेयर इज जो Sx है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है डेटा x का, और Sy जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है डेटा y का. देन इट इज समेशन ऑफ xi माइनस x बार और yi माइनस y बार. ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जब समेशन करेंगे वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में n-1 मतलब जितने डेटा है उसमें से एक माइनस करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y से मल्टीप्लाई करना है. सो इन दिस वे ये जो कोरिलेशन में आपका फॉर्मूला दिख रहा है, इससे आप दोनों के बीच का कोरिलेशन निकालते हैं. लाइक हमने यहाँ पर एक छोटा सा डेटा दिया है. वी हैव गिवन सम स्मॉल डेटा, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट स्टडीइंग एंड टेस्ट स्कोर्स. अब ये जो पहला जो सेट है
अगले में मैं लेके चलता हूं आपको एक बार। आई एम जस्ट टेकिंग यू थ्रू किस तरीके से निकाला है हमने। पहला डेटा सेट जो नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड थे उसको XI मान लिया है, X है। दूसरा Y है, जो नंबर ऑफ जो स्कोर्स हैं स्टूडेंट्स के वो Y हो गया, और X जितने घंटे उन्होंने पढ़ाई करी थी। अब इन दोनों के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है इस फॉर्मूले की मदद से। कैसे कैसे किया है वो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, हाउ वी डू इट। एक बार प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। ये देखिए XI YI हो गया, उसमें हमने XI माइनस X कैलकुलेट किया है पहले सारे डेटा के लिए। उसके पहले नीचे हमने X बार इज द मीन, एवरेज निकाला है, और Y बार ये Y का एवरेज निकाला है। इस डेटा का हमने एवरेज या मीन निकाला, X वाले डेटा का हमने एवरेज और मीन निकाला। ये निकालने के बाद हमने XI माइनस X किया, मतलब 13 में से 12.5 माइनस किया है। 13 इज द डेटा, 12.5 इज द मीन ऑफ द डेटा। सो वी हैव सब्सट्रैक्टेड 13 माइनस 12.5, 15 माइनस 12.5, 7 माइनस 12.5, और दूसरा जो Y की वैल्यू आई है मीन 68 आई है। तो देन वी हैव कैलकुलेटेड ये 63 माइनस 68 एंड देन 69 माइनस 68। इस तरीके से हम इसमें सारा डेटा लिखेंगे, इसके अंदर सारा डेटा लिखेंगे। ये डेटा लिखने के बाद नीचे हम उसका समेशन, आई विल शो यू इन द नेक्स्ट वन। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं, नहीं, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशंस कैलकुलेट किया है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो हम पहले निकाल चुके हैं, इसी के अंदर है। we'll just go to the slide show and we'll jump to that slide just to show you there. Slide show from current slide, we'll go to standard deviation। यहाँ से हम जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हमने ये किया था और इससे हमने फॉर्मूले से निकालने की कोशिश की थी। इसमें XI माइनस X बार था, X वॉज द डेटा, X बार वॉज द मीन। दोनों का माइनस करके हमने स्क्वायर्स किया था, उनका समेशन करके n-1 सैंपल के केस में हमने उससे डिवाइड करके अंडर रूट निकाला था। और इसके बाद हमने इसमें आपको ये क्या निकाल के भी इसके अंदर दिखाया हुआ है कि हाउ वी हैव टू डू इट। X बार यहाँ पे 15.4 निकला था, 15.4 को हमने सारे वैल्यू से माइनस किया है यहाँ पे। फिर उसका नेक्स्ट स्लाइड में यू विल सी कि वी हैव कैलकुलेटेड द स्क्वायर्स, और स्क्वायर वैल्यूज को सम किया, 75.2 आया, वो हमने न्यूमरेटर में रखा। डिनोमिनेटर में n-1 5 क्योंकि टोटल वैल्यूज थी तो 5-1 किया। दिस पूरे वैल्यू को हमने 75.2 और डिनोमिनेटर में 5-1 इसको निकाल के इसका स्क्वायर रूट किया तो 4.336। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन निकला था। विल गो बैक टू आवर कोरिलेशन स्टफ। तो यहाँ आप देखेंगे हमने दोनों वैल्यूज का X का मीन निकाला और X का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। सिमिलरली Y का हमने मीन निकाला और Y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। और न्यूमरेटर को फाइंड आउट करने के लिए हमने XI माइनस X बार किया, YI माइनस Y बार किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और उनका समेशन कर लिया, उनको जोड़ लिया तो 821 आया। ये न्यूमरेटर में आपका 821 चला गया, डिनोमिनेटर में आपके क्योंकि वैल्यू 6 है तो 6-1 चला गया, और SX और SY जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था 8.28 एंड 32.91 वो नीचे यहाँ पर इसकी वैल्यूज आ जाएगी। इससे आपका आंसर निकल के आया कोरिलेशन इज 6.602। 0.602 पॉजिटिव निकल के आया। इससे एक चीज पता चलती है कि आपका जो वैल्यूज है वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन दिखा रहा है, एंड दैट द कोरिलेशन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग बट यस इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो इस तरीके से देखिए एक वैल्यूज प्लॉट हुई है, ये XI और YI को जब हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो इस तरीके से आ रहा है, और उसके बीच की जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके की लाइन बन के आएगी। और डेटा क्योंकि इससे बिल्कुल नजदीक नहीं है तो वी कैन सी दैट इट इज नॉट वेरी पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, बट डेफिनेटली इट इज अ पॉजिटिव, क्योंकि जैसे जैसे X की वैल्यू बढ़ रही है Y की वैल्यू हमें बढ़ती हुई दिख रही है। सो वी कैन कॉल इट दैट इट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन एंड द स्ट्रेंथ इज नॉट वेरी हाई बट direction is positive, we can say with confidence। इससे एक बार फिर हम बाहर आते हैं, आप लोगों से मुखातिब होते हैं। यहां तक देखिए हमने R निकालना सीखा है। इसको जब मैं एक्सेल में एक एग्जांपल के साथ आपको करके दिखाऊंगा तो आपको बहुत इजी लगेगा, बट उससे पहले मैं रिग्रेशन तक आपको लेके जाना चाहता हूं कि रिग्रेशन तक आप लोग साथ चलें। हमने एक बार कोरिलेशन की यहां पर वैल्यू निकाल ली। कोरिलेशन की वैल्यू निकालने के बाद ये मैंने कुछ सैंपल्स ये प्लॉट किए हैं, एक क्वेश्चन पॉइंट के रूप में मैंने ये ग्राफ आपको दिया है समझने के लिए कि अगर आप ये ऊपर की दो वैल्यूज देखें और आपको मैं आंखों से देख के बोलूं कि इसमें से किसका कोरिलेशन ज्यादा स्ट्रांग है, तो बहुत टेंडेंसी है कि आप लोगों में से लोग बोल देंगे कि जो सेकंड वाला ग्राफ है इसकी कोरिलेशन स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि ये डेटा ज्यादा डेंस दिख रहा है और ये हल्का दिख रहा है। तो यहां पर मैंने सिर्फ इस स्लाइड को इसलिए डाला है टू मेक यू कॉशियस कि कभी आंखों से देख के आप इस तरीके के कंपैरिजंस मत बोलिएगा। यहां पर देखिए दोनों का कोरिलेशन सेम है, -0.88 और -0.88 है। ये इसलिए ऐसा दिख रहा है क्योंकि इनकी जो प्लॉटिंग जो स्केल है वो अलग है। यहाँ पर देखिए 0 से 100 के बीच में प्लॉटेड है और ये 0 से 180 के बीच में प्लॉटेड है। तो ये
इस स्लाइड का मकसद कुछ भी और नहीं था, बट ये था कि आप आंखों से देख के जल्दबाजी ना करें कुछ बोलने से पहले, आप उसके नंबर्स जरूर देख लें। सिर्फ उसका डायरेक्शन आप यहां से जरूर कह सकते हैं कि इट इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन आप उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इस इमेज को देख के अंदाजा ना लगाएं, उसका अंदाजा आप उसकी वैल्यू से ही लगाएं। यहाँ पे जब आपने उसकी वैल्यू देखी 0.88 और 0.88, तो यू आर वेरी मच श्योर कि दोनों में कोरिलेशन की जो वैल्यू है सेम है। डायरेक्शन हालांकि यू कैन ऑलवेज से दैट इट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन। Somebody was trying to say something. इसके बाद देखिए अब हमारी कोशिश क्या है, जब हम कोरिलेशन बना लेते हैं तो उसके बीच में हम ये रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करना है। रिग्रेशन लाइन हमें क्यों ड्रॉ करना है? क्योंकि रिग्रेशन लाइन एक बार आपने ड्रॉ कर ली तो फिर आपको कोई भी एक्स वैल्यू दी गई आप उसकी वाई वैल्यू बता पाओगे। इस लाइन के ऊपर आप प्लॉट कर दोगे और एक्स की कोई भी वैल्यू इफ यू गिव तो आप इजीली हमें बता पाओगे कि इस x के लिए इतना y होगा, मतलब इतने घंटे अगर बच्चा पढ़ रहा है रोज तो उसके इतने नंबर आएंगे। इस तरीके का आप एक प्रेडिक्शन आप कर पाओगे और आप उस डेटा के लिए, उस सैंपल के लिए, उस क्लास के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दोगे और उस लाइन के आधार पे आप ये कह दोगे कि अगर आप इस क्लास को बिलोंग कर रहे हो जिसमें बाकी चीजें सेम है, सेम टीचर, सेम मटेरियल, सेम सराउंडिंग, सेम, एंड देन when you are for this particular class if you are putting in this many hours per day तो you'll be scoring this kind of marks। इस तरीके का एक रिलेशनशिप आप इस रिग्रेशन लाइन के द्वारा बना सकते हो, बता सकते हो। we'll go ahead and we'll see कि ये किस तरीके से हम करते हैं। रिग्रेशन लाइन मैंने ये दो बना के आपको दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो पहला है, इसमें वी आर सेइंग दैट ग्रेड पॉइंट एवरेज है, ये ग्रेड्स और कितने आवर्स स्टूडेंट ने पढ़ा है। दूसरा है ग्रेड पॉइंट एवरेज और कितना टाइम उसने फेसबुक पे स्पेंड किया हुआ है। अगर जितना ज्यादा फेसबुक पे टाइम स्पेंड किया हुआ है तो उसके जो जीपीए है या ग्रेड पॉइंट एवरेज है उसमें नेगेटिव कोरिलेशन है, और जो कोरिलेशन उसके स्टडी आवर्स और उसके ग्रेड पॉइंट एवरेज में है तो वो एक पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसमें जब हम और आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि रिग्रेशन लाइन की जो इक्वेशन होती है दैट इज बेसिकली y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। अलग अलग किताबों में ये b0 और b1 की जगह आपको अलग अलग चीजें लिखी हुई मिलेंगी। आपको किसी से भी पढ़े सबके मायने एक ही हैं, उसका कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन रिग्रेशन लाइन जो होती है वो प्रेडिक्ट करने वाली लाइन जिसमें y की वैल्यू आपको प्रेडिक्ट करनी है, उसमें b0 प्लस b1x, जिसमें b0 जो है वो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट जिसमें वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रहा है उसको हम इंटरसेप्ट कहते हैं। और b1 जो है वो बेसिकली स्लोप होता है। इस लाइन का क्या स्लोप है? स्लोप का मतलब होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कितना x चेंज करें तो कितना y बदलेगा। मतलब x का अगर मैंने एक यूनिट चेंज किया तो y में मेरे कितना फर्क आ रहा है। जैसे अगर स्लोप मेरा 0.5 है तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि अगर मेरा x एक चेंज हो रहा है तो y की वैल्यू उसकी आधी चेंज हो रही है। वी कैन इजीली से दैट। तो और इस केस में देखिए, और जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये जो बीच का साइन है b0 प्लस b1x, इस केस में b0 माइनस b1x हो जाएगा। माइनस कोरिलेशन यहां पर आपका नेगेटिव कोरिलेशन जब दिखाएगा तो ये b1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी और b0 जो है वो दोनों ही केस में इंटरसेप्ट दिखाता है, y एक्सिस पे कहां काट रहा है उस पॉइंट को b0 कहते हैं। और b1 विल गिव यू द स्लोप एंड साइन ऑफ द b1 विल गिव यू द डायरेक्शन। स्लोप, डायरेक्शन और इंटरसेप्ट, ये तीनों चीजें मिल गई आपको तो आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और जब ये लाइन आप ड्रॉ कर लोगे तो आप इजीली कहोगे कि अगर फेसबुक पे बच्चा 14 घंटे स्पेंड कर रहा है तो उसके मार्क्स क्या आएंगे, या पढ़ने में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है तो उसके मार्क्स क्या आएंगे। यू विल बी एबल टू मेक ए प्रेडिक्शन बेसिस दैट। और b0 और b1 निकालने की भी फॉर्मूलाज हमने इसमें दे दिए हैं जिसको आप लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। हालांकि सब कुछ हम कैलकुलेट कर लेंगे अभी एक्सेल के ऊपर जाके बहुत ही एफर्टलेसली। इसमें देखिए जो इक्वेशन है b0 प्लस b1x, इसमें b0 की वैल्यू निकलती है y बार। ये y बार और इस y से कंफ्यूज ना करें, y बार इज द मीन ऑफ y डेटा माइनस b1 मल्टीप्लाइड बाई मीन ऑफ x डेटा। तो इट्स बेसिकली आपको y का मीन निकालना है माइनस x का मीन से b1 को मल्टीप्लाई करना है। मतलब पहले आपको b1 निकालना है, स्लोप पहले निकालना है, तब आप इंटरसेप्ट निकाल पाओगे। स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप निकालने के लिए कोरिलेशन जो r हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, इससे आपका ये स्लोप निकलता है b1। b1 इज कैलकुलेटेड यूजिंग
R, which is correlation, multiplied by standard deviation of Y divided by standard deviation of X. ये चीज आपने निकाल ली, फिर आपको सिंपली ये मीन्स के कोरिलेशन से B0 की वैल्यू निकलेगी, Y बार विच इज मीन ऑफ Y डेटा माइनस B1 यहां से आपने निकाला हुआ है, B1 मल्टीप्लाइड बाय मीन ऑफ X डेटा। तो ये चीज आपने कर ली, तो इससे आपका B0 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहां से आपका B0 की वैल्यू यहां से आप निकाल लेंगे, और इसको अब हम एक एग्जाम्पल के साथ करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे 6-7 बच्चों के स्टडी टाइम लिए हैं और उनका जीपीए लिया हुआ है। इसको किस तरीके से मैनुअली हम कैलकुलेट करेंगे और फिर हम एक्सेल पे जाके इसको देखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, XI और YI ले लिया। XI और YI लेने के बाद हमने इसको प्लॉट किया, हमने इनका जीपीए इस तरफ से प्लॉट कर लिया। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हमने आपको दिखाया है कि किस तरीके से आपने X डेटा, जो पहला डेटा है, इसका आपने मीन निकाला और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, Y का मीन निकाला और Y का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया। उसको हमने इस जगह इनकी वैल्यूज दी हैं। पहले डेटा का मीन है 5, दूसरे डेटा का मीन है 3, पहले डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.26, दूसरे डेटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.08। इन चारों डेटा की मदद से आप बहुत ईजिली R की वैल्यू निकाल लेते हैं। R की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद R की वैल्यू 0.94 आई। R की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप फिर B0 और B1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। B1 क्या था, R इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ X, और B0 क्या था, मीन ऑफ Y माइनस B1 इंटू X। ये सारी चीजें और ये ऊपर जो भी इसमें वैल्यूज लगनी है यहाँ पर कैलकुलेटेड है, पीछे आप कैलकुलेट कर चुके हैं। X का मीन है 5, Y का मीन है 3, SX इज 3.26, SY इज 1.08 एंड R इज 0.94। अब ये सारी वैल्यूज की मदद से आपने B1 और B0 निकाल लिया। B1 और B0 निकालने के बाद ये देखिए 1.45 एंड 0.31 इसकी वैल्यू आई B0 और B1 की। उसके बाद आपने अपना जो इक्वेशन है वो आपने इसके आधार पे बना लिया। इसमें 1.45 जो B0 जो इंटरसेप्ट था उसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 1.45, और स्लोप 0.311 पॉजिटिव था, इसलिए ऊपर की तरफ प्लॉट हुआ, X से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपका एक लाइन बन गई। अब इसके अंदर ये सिंपल लाइन आपने जब ड्रॉ कर ली है, बना ली है, ये आपने इक्वेशन लिख ली और ये एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये दोनों मेथड्स में से आप यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो आप जानते हैं उसका क्या ग्रेड पॉइंट्स उसके आने वाले हैं। x इज इक्वल टू 0.1 का मतलब हो जाएगा 1.761 उसका ग्रेड हो जाएगा। अगर उसने दो वैल्यू डालेंगे तो 0.622 इसमें ऐड हो जाएगा और उसका आप जीपीए कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली ग्राफ में अगर आप इस पॉइंट से यहाँ ड्रॉ करेंगे और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आप उसके स्टडी आवर्स के हिसाब से उसके नंबर्स या उसका जीपीए कैलकुलेट कर पाएंगे। सो ये अल्टीमेट हमारा एम था कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक्स को पढ़ते हुए अपनी रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर सकें और रिग्रेशन लाइन के द्वारा हम प्रेडिक्शंस कर सकें एक पर्टिकुलर सैंपल या पॉपुलेशन के लिए। इसको मैं एक बार पहले एक्सेल पे एक बार आपको दिखा देता हूं और फिर हम इस पे वापस आएंगे। देखिए एक्सेल पे अगर हमको इसको कैलकुलेट करना है तो मैं आपको ये डेटा, मैंने ये कैलकुलेशन करी हुई है, मैं दोबारा एक बार आपको कैलकुलेशन कर देता हूं। देखिए सेम डेटा है, ये स्टूडेंट के स्टडिंग आवर्स थे, स्टडिंग आवर्स हो गए और ये जो है उसके मार्क्स हैं, उसका जीपीए है, ग्रेड पॉइंट एवरेज है। अब ये दो कैलकुलेशन, ये दो डेटा आपके पास अवेलेबल है। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे हटा देता हूँ, आई जस्ट रिमूव इट, आई विल डू द कैलकुलेशन वंस अगेन फॉर योर कन्वीनियंस, जिससे आप लोग एक बार देख सकें। यहाँ देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पर मीन कैलकुलेट करेंगे, मीन, फिर उसके नीचे हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर हम उसके नीचे कोरिलेशन निकालेंगे। आपने पीछे जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज देखे थे वो कोरिलेशन यहाँ पर, और सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली निकाल लेंगे फॉर्मूलेज के इस्तेमाल से। पहला हम क्या करेंगे, मीन के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने और ये डेटा सेलेक्ट किया और हमने इसको क्लोज किया, एंटर किया, डेटा इसका 5 आ गई मीन। इन सारी वैल्यूज़ को थोड़ा मैं बोल्ड और बड़ा कर देता हूँ, होम, येलो, बोल्ड, ये मीन निकल गया। यहाँ पर हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन, STD स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया हमने, डेटा हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया और हमने इसको क्लोज किया, हमने बंद किया, ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। इसको हमने पुल किया सामने, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। कोरिलेशन दोनों की एक ही निकलेगी, हम इसका कोरिलेशन निकालेंगे। कोरिलेशन हमने डाला, फॉर्मूले को एक्सेप्ट किया हमने, वो हमसे कह रहा है दोनों डेटा बताओ, क्योंकि कोरिलेशन दो सेट ऑफ डेटा के बीच में निकलता है। हमने कॉमा किया और हमने इसको सेलेक्ट किया।
सेलेक्ट करने के बाद हमने ब्रैकेट क्लोज किया, हमने एंटर किया, ये हमारा कोरिलेशन। अगर आप पीछे अपने ग्राफ पे जाएंगे जहाँ पर हमने पीपीटी पे मैं लेके चलता हूँ, ये वैल्यूज़ देख लीजिए 5, 3, 3.266, 1.08 एंड 0.94। यहाँ पर जब हमने इसको मैनुअली कैलकुलेट किया था, यहाँ पर जब हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड डेविएशंस निकाले थे हमने, ये देखिए मीन था 5 और 3, 3.26 एंड 1.08। हम वापस आते हैं अपने 5 और 3, ये मीन हो गया, 3.26, 1.08, 3.26 और 1.08 एंड 0.94 कोरिलेशन हो गया। तो एक्सेल के अंदर आप 2 मिनट के अंदर अपने डेटा को कैलकुलेट कर लेंगे, वहाँ आपको बहुत टाइम लगेगा, बट यू नीड टू नो कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने वो सारी पीपीटी बनाई है जिससे आपके बेसिक्स और कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए। उसके बाद ये आपने निकाल लिया, फिर आपको रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करनी है। आई जस्ट डिलीट दिस, आई क्रिएट सम स्पेस हियर एंड आई डू इट अगेन। मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर हम एक बार रिग्रेशन लाइन ड्रॉ कर लेंगे। रिग्रेशन लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपको बताया था, डेटा में जाके हमें डेटा एनालिटिक टूल्स हमें रखना है। डेटा एनालिसिस टूल के अंदर हम रिग्रेशन को जाके ओके करेंगे। रिग्रेशन को हमने ओके किया, रिग्रेशन को ओके किया तो वो हमसे इनपुट रेंज पूछ रहा है कि आपका वाई डेटा कहाँ पर है। वाई डेटा मेरा जीपीए है, वो हमने दे दिया इनको। उसके बाद वो पूछ रहा है आपका एक्स डेटा कहाँ है, हमने एक्स डेटा दे दिया। और उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है आउटपुट आप कहाँ पर चाहते हो। आउटपुट मैं इसको बोल देता हूँ मुझे यहाँ पर चाहिए, आउटपुट यहाँ पर चाहिए और मुझे लाइन प्लॉट भी चाहिए एंड आई से ओके। और हमने उसको बोला ओके। अच्छा, सेम डेटा विल बी हिडन बाय, अच्छा ओके। उसको जगह कम पड़ रही है, फिर भी वो पूछ रहा है, मैं इसको बोल देता हूँ। उसने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये उसने रिग्रेशन के पॉइंट्स यहाँ पर प्लॉट कर दिए। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे उसने इंटरसेप्ट और इसकी वैल्यू, मैं इसको डार्क और बोल्ड करता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये बड़ा किया मैंने इसको, ये देखिए इन दोनों जगह पे अगर मैं जाऊँगा तो आपने जो पीछे इंटरसेप्ट और ये कैलकुलेट किया था आपने, स्लोप और इंटरसेप्ट 1.43 एंड 0.3125। अगर मैं वापस अपनी पीपीटी पे जाता हूँ, लेट मी गो बैक टू द पीपीटी अगेन, और यहाँ पर आप देखिए आपका वैल्यू हमने कहाँ कैलकुलेट करी, 1.45 एंड 0.311। ये जो आपकी वैल्यूज आई थी उसके जस्ट पहले वाले फिगर्स पे चलता हूँ और पीछे चलता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर देखिए आपने B1 इस जगह हमने कैलकुलेट करके निकाला था, B1 इज 1.45 एंड सॉरी B0 इज 1.45 एंड B1 इज 0.311। इसको जब मैं एक्सेल में आपके हमने निकाल के दिखाया, जब हमने एक्सेल में निकाला तो ये देखिए 1.4375 एंड 0.31, ये दोनों वैल्यूज आपकी आ गई। बेसिस ये रिग्रेशन लाइन आपका ड्रॉ होके आ गया। तो एक्सेल के अंदर ये आप फटाफट कर पाएंगे, लेकिन इस पीपीटी से आपको ये मदद मिलेगी समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। ये 70-80 स्लाइड्स की जो आपको पीपीटी मैंने बनाई है, ये आपको पूरे जो स्टैटिस्टिक्स का एक ओवरव्यू देगी कि किस तरीके से आपने मीन निकालना सीखा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा, फिर आपने उसके अंदर से कोरिलेशन को समझा, कोरिलेशन निकाल के आपने रिग्रेशन लाइन बनानी सीखी, और रिग्रेशन लाइंस के बाद आप प्रेडिक्शन करना सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस पीपीटी के अंदर मिलेंगी। तो जो भी सीरियसली थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स के चीज़ों को समझना चाहते हैं, प्लीज़ गो थ्रू इट, गिव 1 आवर टू दिस, और 1 घंटे में आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपसे डाउट्स लूँगा, पहले किसी के कुछ डाउट्स है तो मुझे बताइए, मैं इसको एक बार और रन करूँगा जिससे आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाए नेक्स्ट क्लास। बट मीनवाइल आप मेरे को बताइए, आप लोगों को यहाँ तक एटलीस्ट ओवरव्यू मिला है कि क्या किया हम लोगों ने? गाइज, वॉज इट टू फास्ट? कुछ ज़्यादा तेज गए हम लोग क्या? आई वुड लव सम फीडबैक्स। आप लोग बताएंगे कुछ कि समझ में आया आप लोगों को कि क्या हुआ है इस पूरे सेशन में, जो हमने स्टैटिस्टिक्स में पीछे 4-5 सेशंस दिए हैं, उसमें क्या आप लोग समझ पाए कि हाउ वी हैव मूव्ड अहेड एंड व्हाट वी हैव सीन लर्नड? Yes, sir. ओके ओके। अब इसमें देखिए मेरी कोशिश ये थी कि स्टैटिस्टिक्स का एक ब्रॉड परव्यू आपको दूं। आगे आप जो लोगों का इंटरेस्ट होगा या बाकी के कोर्सेज में हम डेप्थ में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मेरे को एक आउटलाइन आपको देना था कि किस तरीके से स्टैटिस्टिक्स मूव करता है, और उस स्टैटिस्टिक्स को मूव करने के लिए आप उसके फंडामेंटल्स को समझें और फिर उसको आप एक्सेल पे निकालना सीखें। तो काइंडली बी फ्री विथ योर फीडबैक, जिससे मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो मैं फिर से आऊँगा। देखिए पिछली क्लास में मुझे थोड़ा सा आइडिया लगा था, मैंने फिर ये पीपीटी बनाई ताकि आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर उसको पढ़ेंगे, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ देयर, और ये यूनिट आपको क्या कोशिश क्या कर रही है, आपको किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है।
Sir, Yeah, Riaz. can you explain data analytics tool? Yes, I'll do that. Output only. Okay. And anybody else? Some feedback, something? Guys, you need to tell me. आपको मुझे बताना पड़ेगा. चलिए, मैं रियाज आपका डाउट तो क्लियर करता हूँ. इट इज आप सबने ये टूल डाउनलोड कर लिया है? द टूल यू हैव बीन एबल टू डाउनलोड? Yes, sir. ओके, मैं कंट्रोल सी करता हूँ. आई विल गो टू ए न्यू स्लाइड, आई विल गो टू ए न्यू पेज. कंट्रोल वी किया मैंने. ये देखिए, टू द क्लास, आप मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन ये समझ पाए कि मैं दोबारा निकाल दूँ? शैल आई डू इट अगेन? Sohail, shall I do it again? Sir, it's clear. It's clear? Okay. Yes, So, sir. mean, standard deviation, correlation हमने निकाल लिया. Regression के लिए हमें क्या करना है कि हम जाएंगे, we'll go to data, we go to data analysis, select regression and say okay. यहाँ तक हमने कर लिया. अब ये पूछ रहा है what is your y values. So हम उसको बताएंगे कि ये हमारी y values हैं. Okay, then it is asking us what is your x values. We'll tell it these are my x values. Okay, then it is asking me मैं output कहाँ पे दूँ, means where should I put the result. तो आपको वो cell address देना है where it should give the result. So I'll say you can give any cell. आपने H दे दिया, या you can also say new worksheet, new workbook. तो Excel will prepare a new worksheet or a new workbook also, but I want it here only, so I have given the address as H1 cell address I have given here, and I have selected my line fit plots also, and I say give me regression analysis, and I press on OK. जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे दे देता है. इट कैलकुलेट्स लॉट ऑफ थिंग्स, जिसमें से बहुत सारी आपको अभी ज़रूरत भी नहीं है, बट आगे आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर से निकल के आ गई हैं. इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ जो कोफिशिएंट्स निकल के आए 1.43 एंड 0.3155, दीज आर द बेसिकली B0 एंड B1. और ये आपका ग्राफ प्लॉट हो गया है. ये ग्राफ आपको ये दिखा रहा है कि आपका पॉजिटिव कोरिलेशन था, और आपके इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रहा है कि 1.43. अगर बच्चा 0 घंटे भी पढ़ेगा तो एटलीस्ट 1.43 ग्रेड आएगा उसका. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग. अगर मैं ग्राफ को प्लॉट करके ये लाइन अगर मैं दिखाऊं उधर से आपको, तो 1.43 का मतलब यही निकलता है कि y की वैल्यू 1.43 है डिस्पाइट x बीइंग 0. मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं करेगा तो भी थोड़े मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बिकॉज अभी तक उसको कुछ कॉमन सेंस है, कुछ जानकारियाँ यहाँ वहाँ से है. सो इट इज़ कमिंग लाइक दिस. एंड उसके ऊपर फिर एक कोरिलेशन है कि अगर एक पॉइंट ऑफ x मतलब 1 घंटा पढ़ाई बढ़ाता है तो 0.31 उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे. 0.31 जो बता रहा है, जो B1 की वैल्यू है 0.31, इट टेल्स यू दैट विथ एवरी यूनिट इंक्रीज इन x व्हाट इज द इंक्रीज इन y. एक घंटा वो पढ़ाई बढ़ाता जाएगा तो 0.31 उसका ग्रेड ऊपर बढ़ता जाएगा. तो अगर उसको एक ग्रेड पूरा बढ़ाना है तो उसके लिए करीब उसको 3 घंटे की पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी. सो इफ इज बाय डिफॉल्ट ही इज गेटिंग 1.45, ही वांट्स टू रीच अ ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 2.45, तो ही नीड्स टू स्टडी फॉर अराउंड 3 आवर्स पर डे. ये रिलेशनशिप आपका यहाँ से निकल के आएगा. So this is the meaning of this analysis. This is what it is coming out of here. ये क्लियर हुआ क्या रियाज आपको? Yes, sir. This is clear to you? Sir. Okay. और कुछ गाइज, कोई मेरे को थोड़ा फीडबैक दो यार, मेरे को कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज वी विल बी ब्लैंक. आई एम टॉकिंग टू द वॉल्स. ओनली 2-3 पीपल आर रेस्पॉन्डिंग. सो आई विल रिक्वेस्ट, प्लीज़ बताइए. अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छा लगा है, तो भी प्लीज़ बताइए, तो वो मेरे को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देगा. एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताइए. दैट विल लेट मी नो दैट व्हाट मोर आई शुड डू. बट प्लीज टेल Sir, can you explain the regression from the presentation? You want me to explain regression from the presentation? Okay. Yes, okay. sir. Okay.
अब इसमें देखिए सुहेल एंड रेस्ट ऑफ द क्लास ऑल्सो कि Yes, sir. कि आप लोगों को कोरिलेशन तक समझ में आया। कोरिलेशन का एक फॉर्मूला है, ये डेफिनेटली एक फॉर्मूला है, बट कोरिलेशन है क्या अगर कोई पूछता है तो कम से कम आप ये तो बता पाएंगे कि x और y के बीच का संबंध है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y, वो कोरिलेशन है। कोरिलेशन उसको जब आप कहते हैं कि संबंध है तो बड़ा थ्योरेटिकल हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। कोरिलेशन उसको डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ बताता है। दो चीजों के संबंध को, दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि कोरिलेशन पॉजिटिव 0.5 है तो इसका मतलब कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, लेकिन जब एक एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है वो 1 यूनिट से बढ़ेगी तो एक्स वाई वाली वैल्यू आधी यूनिट से बढ़ेगी। ये हमको पता चलता है कोरिलेशन से। इतना आप लोगों को क्लियर है? Am I able to make this clear to you guys? Yes, sir. ओके। अब ये देखिए, यहां से हमने कोरिलेशन को दिखाया था। अब कोरिलेशन के बाद हमने ये बोला कि ये जो डॉटेड लाइंस है इससे तो आपको कोरिलेशन दिख जाता है। मतलब कोरिलेशन अगर मैं आपको सिर्फ ये डॉटेड लाइंस दिखा दूं तो आप बता दोगे मेरे को कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन रिग्रेशन क्या है? इनके बीच में एक लाइन हम प्लॉट कर देते हैं, लाइन प्लॉट कर देते हैं। जब तक हम लाइन नहीं प्लॉट करते हैं हम एक इक्वेशन प्रॉपर नहीं दे सकते, और एक प्रॉपर इक्वेशन नहीं दे सकते तो हम रिलेशनशिप के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो इसके ये डेटा मिलने के बाद हम एक रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। रिग्रेशन की लाइन ड्रॉ करने के लिए ग्राफ में अगर आप कोई भी लाइन को जब ड्रॉ करने जाते हैं तो उसके बीच में जो उसका जो इक्वेशन होता है वो बेसिकली इसी फॉर्म का होता है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे b0 b1 लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हो, p लिख सकते हो, q लिख सकते हो, बट इन दोनों की जो रिलेशनशिप होती है, अगर y इज इक्वल टू एक्स है तो उसका रिलेशनशिप आप लोग समझते हैं। y इज इक्वल टू एक्स मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 2 है, वो y इज इक्वल टू एक्स होता है। y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 अगर मैं बोलूँ तो y की वैल्यू अगर 1 है तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 4 है, क्योंकि y बाई एक्स बाई 2 है, 2 यहाँ से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वो बेसिकली स्लोप हो जाता है, वो इसका स्लोप कहलाता है डेल्टा x डेल्टा y। मतलब x में बदलूंगा तो y कितना बदलेगा, वो चीज़ होती है हमारी ये b1 जिसको हम स्लोप कहते हैं। और b0 जो होती है वो इंटरसेप्ट होती है, वो इस पे आती है। वो ये कहती है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो भी y की क्या कुछ वैल्यू होगी। अगर हम x इक्वल टू y कहते तो उस केस में इंटरसेप्ट हमारा 0 होता, क्योंकि ग्राफ हमारा यहाँ से प्लॉट हो जाता, ओरिजिन से क्रॉस करता। लेकिन ये ओरिजिन के ऊपर गया है, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू जब 0 भी है तो भी y की कुछ वैल्यू है। बच्चा नहीं भी पढ़ेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में उसको 0 आएंगे। आप अभी पूरी सेमेस्टर पढ़ाई नहीं करोगे फिर भी पेपर लिख के जाओगे तो यूल गेट फ्यू मार्क्स, सम मार्क्स। वो आपका ये इंटरसेप्ट दिखाता है। और उसके बाद आपका रिलेशनशिप है कि उसके ऊपर से आप जितनी मेहनत करते जाओगे उससे आपका ग्रेड कितना बढ़ता जाएगा। वो ये रिलेशनशिप इससे y इज इक्वल टू b0 प्लस b1 x से निकल के आता है। तो सबसे पहली चीज ये कोरिलेशन जो हमने निकाला वो निकालना है। कोरिलेशन निकालने के बाद फिर b0 b1 को जहां से मैंने एक्सप्लेन किया और इनकी वैल्यूज को एक्सप्लेन किया। जो b0 और b1 है उसमें पहले आपको b1 कैलकुलेट करना है विच इज द स्लोप। इसका फॉर्मूला है r मल्टीप्लाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। स्टैंडर्ड डेविएशन y डेटा का हमको निकालने आता है। y क्या था इस केस में? GPA थे, मार्क्स थे, और x क्या था? नंबर ऑफ आवर्स थे। दोनों डेटा का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया तो और कोरिलेशन निकाल लिया, तो कोरिलेशन मल्टीप्लाइड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, you'll get the value of b1. Once you get the value of b1 you can calculate the value of b0. b0 is mean of y डेटा, यहाँ पे आपका GPA है, माइनस b1 जो स्लोप निकला मल्टीप्लाइड बाई x का मीन, यहाँ पे स्टूडेंट के स्टडिंग आवर्स है। इन दोनों डेटा को डालोगे तो b0 और b1 आ गया। एक बार आपका b0 और b1 आ गया तो आपकी इक्वेशन तैयार हो गई। उसके बाद आप उस इक्वेशन को कॉन्फिडेंटली यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर जब सारी वैल्यूज निकाल ली थी, सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, तो b0 और b1 की वैल्यू हमने यहाँ रखी और हमने बोला कि y इज इक्वल टू 1.45 प्लस 0.311x, ये मेरी इक्वेशन बन गई। और उस इक्वेशन को जब आपने प्लॉट किया तो x y एक्सिस पे 1.45 पे काटा और ये यहाँ से आपका ग्राफ चला गया। इस तरीके से आपको मालूम है कि इस ग्राफ की जो वैल्यूज हैं इस पे जब मैं प्लॉट करूंगा, यहाँ पे मैं 6 घंटे प्लॉट करूं तो उसके जो ग्रेड पॉइंट्स आएंगे करीब 3 के ऊपर ग्रेड पॉइंट आएगा। अगर उसका 10 करूं तो उसका ग्रेड पॉइंट करीब 4.5 आएगा।
सिमिलरली यहाँ पर भी आप जब 10 x की वैल्यू 10 डालेंगे तो x की वैल्यू 10 डालते ही 3.1 प्लस 1.45 4.6 का उसका ग्रेड पॉइंट एवरेज आउट ऑफ 5 आ जाएगा। अगर वो 10 आवर्स रोज पढ़ रहा है तो उसको जरूर 4.6 का GPA उसका आएगा। ये अपन यहाँ से प्रेडिक्शन कर पाएंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ इट। क्या आप लोगों को ये समझ में आया है यहाँ तक? Yes, sir.